Okay, so this is our first lab, and I want to know from you people, have you attended one lecture for C programming? Has it been done yesterday? Sir, No, we sir. had one lecture, but it was only for 25 minutes. 10 minutes basically. Why? सर सारा टाइम जो था वो कम्युनिकेशन में चला गया, वो Yes, sir. प्रेजेंटेशन And सेट so करते हुए. there was a network issue. Technical. Sir joined 20 minutes late, so that's why. Okay, okay, no issue. तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन में क्या बताया गया है लैब लेक्चर में? एंड हु इज टेकिंग योर लेक्चर? हु इज द क्लास सर टीचर? वशिष्ठ सर. अनिल वशिष्ठ सर. ओके, हाँ जी सर. Yes, sir. okay, okay. So technically, what have you heard about your C programming yesterday? Can you people give me the keywords so that I can start from that point? Main function. Include studio.h. Okay, so you people are saying आप लोगों ने कल ये देखा है hash include stdio.h Yes, sir. एंड Yes, आप sir. लोगों ने एक ये मेन फंक्शन देखा होगा int main, ऐसे कुछ करके देखा होगा जिसमें लिखा Yes, होगा sir. printf Print hello. Yes sir. Yes, sir. hello world, है ना? ये आपने कल देखा है. Yes, sir. Yes, sir. ओके, और यहाँ पे देखा होगा रिटर्न 0. Yes, sir. Sir, नहीं था? return 0 अभी नहीं कराया था. नहीं सर, ये नहीं हुआ. अच्छा, अभी रहता है ये. ओके, आज हम कर लेंगे इसको. Okay, so first of all, I want to introduce myself. My name is Dr. Sahil Sharma. I have done my PhD in computer vision, and my topic was around 3D face reconstruction. आप लोगों को पता नहीं इसके बारे में कितना पता है कितना नहीं, but it is a very new topic in the field of computer vision and AI. And my expertise is in Python as well as machine learning and deep learning. I am teaching machine learning to third year these days, but now I will be also teaching you C programming. I am also taking C programming lectures. Also, I have a YouTube channel, CS by Sahil Sharma. I am planning to record all the videos and put it on my channel also. I will share that link for this lab also. This recording will be on my channel. I will share that link by the next lab. So that's all about my introduction. Now, I'm sure that you people are new to C programming. It may or may not be the case that you know anything about this programming language. First of all, I want to mention that C programming is one of the oldest language in in our computers. Before this, there were multiple languages, COBOL, B programming. So there was one B programming also before C programming, and there was Fortran. So these were few old languages and kind of less powerful compared to C. There was also there was also another language for the computer architecture. I am unable to recall that name. That was actually very difficult for human beings to understand. So C programming was the first language that came in 1970s, between 1970s and 80s. This language was given by two scientists, Brian Kernighan and Dennis Ritchie. So you must have seen the syllabus. आप लोगों को syllabus कल दिखाया गया होगा, where the first book was by these two people, the scientists who made this C programming, and you must have been told that C is the mother of all languages. Yes or no? So syllabus नहीं दिखाया था. सिलेबस में बताया. No, sir. Syllabus नहीं बताया? एक second नहीं, दो मेरे को. वैसे तो it's part of lectures, but I will try to find the syllabus and share it with you right now. 1 second, give me 1 second. At least you people should know that what you are going to learn, and based on that you can go ahead with the syllabus. सर वैसे सिलेबस जो है हमारे एलएमएस पे भी अपडेट हो गया, तो स्लाइड्स जो है हमारे पास एलएमएस पे थी ऑलरेडी, तो एल्गोरिथम स्ट्रक्चर्स वगैरह वहाँ लिखा हुआ है. हाँ हाँ, वो सब तो चलो है ही है. मैं तो सिलेबस देख रहा था कि एटलीस्ट आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें करना क्या. हाँ जी, हाँ जी, बताओ. सर हम लोग सी के लिए मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर प्रेफर करें? अभी मेरे को 1 मिनट दो, मैं इस पे आ रहा हूँ. ठीक है, आई एम क्योंकि- coming to this dear. Give me just 1 minute. Sharing my screen for the syllabus. I have found it. Okay, so this is the syllabus, how it looks like. There are some basic things. We will start, I mean, your teacher will start with these topics with the binary number system. अभी तो introduction हुई है, तो binary number system will be the first thing that will be covered, and
3 lectures will be enough, I think, for these 3 topics. And then you will know about what algorithms are and how these things work generally on the back end. C language will start after that. And yesterday, and especially in today's lab, we will be discussing more about structure of C programming. So when we say that we are using hash include stdio.h or we are using int main, so we are discussing kind of the structure of C program. And the basic idea was to give you I mean, I think in the lecture also it is more about giving you idea about the structure in the beginning, because you had to attend your lab today. इसलिए first lecture is about structure, and then they will come to the binary number system. And after that, there will be other things: functions, arrays, string pointers, structure union. So all of these things will be covered. And laboratory work is that we will be using our C programming language to build all kinds of programs. जो भी आप क्लास में पढ़ोगे, हमारे पास पहले से pre-designed, we have the assignments, and we will be discussing those questions. I will be helping you with that. You people can share your screen अगर आपको कोई दिक्कत आती है. And also you can see that this is the first book, C programming language, by Brian Kernighan and Dennis Ritchie. So I was mentioning these 2 names. These 2 people were scientists, and they made the C programming language to get the work done. And there are other books also. You can pick any one and go ahead with that. So personally, I would recommend you to go with this C programming language, but some people might find it difficult. बहुत पतली book है ये, जो original book है, it is I think around 150 or 200 pages. और इसमें एक पेज ऐसा लिखा गया है कि मतलब explain कम करा गया, बस to the point बात बताई गई है जैसे होते हैं very senior scientist people. अगर वो कोई बात लिखेंगे, it is kind of a manual for them, right? तो मतलब हो सकता है कि आपको ये बुक एक बार में समझ ना आए, but then you people have us the teachers to make you understand those concepts, and you people can read these books also. This last book is also very famous, Let Us See, by Yashwant Kanitkar. So this book is also very famous in the student community, so you can go ahead with these things. आप अपनी choice से ये book ले सकते हो, PDF download कर सकते हो, you can find all these things online, या फिर आप order करके मंगवा लो. When the colleges will be open, when you will be coming to college, you can also get these books issued from the library. So coming back to our notebook. Excuse me, sir. Anji. So those books won't be provided in PDF form on the LMS? No, because for simple reason, हम अपने ऊपर केस नहीं करवाना चाहते यार कंपनी वालों से, right? So जो भी publisher है, they want that their books should be sold. So you can get those books from library when you come to college. Otherwise you can find it on your own. Google search करोगे तो might be you can find it. क्योंकि ये books बहुत पुरानी हैं, जैसे जो basic book है by Dennis Ritchie, so that should be available online. It is nearly Should we buy the books until the online classes continue? I would still say that you can find it online. कभी कभी मिल जाता है. There are some websites that available on those. The books are PDF. available. ठीक है, PDF मिल जाएगा. तो अभी आप देख लो, अगर आपको PDF मिल जाता है, it will be good for you. At least you can make a choice कि आपको physical book कौन सी खरीदनी है. आप तीनों books का PDF ढूंढ लो, अगर मिलता है तो आपकी खुशकिस्मत होगी. एंड आई थिंक दैट एक बार आप सबको देख लो, एक बार PDF स्क्रॉल करके पता चल जाता है कि यार ये बुक मेरे को समझ आ रही है, ये नहीं आ रही. तो आप वही बुक खरीदो जो आपको समझ आए. ऐसा ना हो कि आपने खरीद ली, अब मेरे कहने पे आपने डेनिस रिची खरीद ली कि चलो ठीक है हम कर लेंगे, वी कैन गो हेड विद दिस साइंटिस्ट बुक जिसने ये बुक बनाई है, जिसने ये सी प्रोग्रामिंग बनाई है. बट देन एज ए बिगिनर it may or may not be the case कि आपको पूरी बुक समझ आ रही है. Personally, when I was your age, when I started reading that book, it nearly took me 1 day to understand 1 page. मतलब जब मैं 18 साल का था, right now I'm 31, तो मैं as a beginner आपको बता पा रहा हूँ कि अगर आप जैसे बिगनर हो, आप अभी एंटर हुए हो फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आपको हो सकता है कि वो बुक समझ में ना आए, अनलेस यू आर आल्सो फॉलोइंग फ्यू वीडियोस ऑन यूट्यूब, यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स, आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हो. और मैं चाहता हूं कि आप लोग पार्टिसिपेट भी करो, एक एक चीज डिस्कस करें. वी हैव दोज 100-minute लैब्स, ठीक है. तो आई हैव द टाइम टू डिस्कस ऑल योर डाउट्स. आप 20-21 जने हो, मेरे लिए आसान है आपको हैंडल करना. बट फॉर ए टीचर हु इज टेकिंग ए क्लास इन विच देयर आर नियरली 90 to 100 or maybe 150 students, it is very difficult to handle all your doubts. So you can ask all your doubts to me, I can handle that. I assure you, I will try to answer the best thing that I know, and you people can go ahead with that then. तो अभी बात करते हैं सॉफ्टवेयर की. सो समवन वाज आस्किंग मी दैट व्हिच सॉफ्टवेयर यू शुड यूज. लेट मी शेयर द स्क्रीन. 1 second, I will show you
एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर सी और सी प्लस प्लस में फर्क क्या होता है बेसिकली? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये दो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सी सबसे पहले आई थी, सी इज द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस केम लेटर ऑन। सी प्लस प्लस आया जो कमियां सी में थी उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। सी प्लस प्लस आपको अगले सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा डिटेल में, बट फॉर नाउ आई कैन ओनली से दैट सी इज कंपेयर टू सी प्लस प्लस थोड़ा लेस पावरफुल। क्यों, क्या है कि एक ना बेसिक सी चीज होती है। आई विल टेल यू वन सेकेंड, गिव मी one second. So I think that you can see my screen. You can see that there is this Dev C++ written at the top. ठीक है। Yes, sir. तो देव सी प्लस प्लस आपने सॉफ्टवेयर यूज करना है तो आप अगर सर्च करोगे तो देव सी प्लस प्लस या देव सीपीपी आप सर्च करो ऑनलाइन, आपको फ्री में सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। देयर इज दिस लिंक बाय sourceforge.com. So if you can go to this link, you can freely download this software. It is a 48 MB setup and it is easily installable in the Windows system. ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर ये होगा। सेकेंडली सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बट फॉर नाउ। हाँ जी सर अगर हमारे पास मैक है तो उसमें देव सी प्लस प्लस नहीं डाउनलोड हो रहा, Yes, sir. फिर अब क्या करें? हाँ जी, तो नहीं होगा सर उसमें। गिव मी VS वन कोड सेकेंड। चल जाएगा क्या? आई मीन VS कोड इज इट सूटेबल फॉर C प्रोग्रामिंग? Yeah, I mean it is suitable, but then I would still say go with Dev C++. Reason being, आप लोगों को ना एक इशू ये आ सकता है that let's say आपका कुछ रन नहीं हो रहा कोड, ठीक है। तो आप वो वाला कोड अगर मेरे को सेंड करोगे तो मैं देव सी प्लस प्लस में रन करके आपको बता पाऊंगा कि आपकी क्या कमी है, ठीक है। तो लेट्स कीप इट वन वे। देव सी प्लस प्लस आप सर्च करो यहाँ पे, जैसे अगर मैं करूंगा तो देव सी प्लस प्लस डाउनलोड विंडोज। so this link is available SourceForge. And for Mac people, what you can do is you can use this online C compiler. अगर आप Google search करोगे online C compiler, you will get this thing as the first link. ठीक है। तो ऑनलाइन सी कंपाइलर इज द फर्स्ट लिंक एंड व्हेन यू विल ओपन दिस लिंक you will read you will land on this page where by default आपको ये कोड मिल जाएगा। and what you people can do is you can directly start running your code. अब जैसे मुझे ये hello world वाला कोड लिखा हुआ है as it is, तो मैं इसको यहाँ पे रन क्लिक करूंगा तो ये मेरा यहाँ पे hello world प्रिंट करवा रहा है। and the best thing about this online compiler is that it is also usable from the phone. Right now I can understand there might be few people, at least 25 to 30% people who are not having laptops. So for them also it is easier to go ahead with this online compiler, and for the beginning classes you can run your codes here. You can get the work done from here itself and then you can also save. तो आप यहाँ पे सेव करोगे, आई होप कि यहाँ से कुछ डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ लॉगिन करना पड़ सकता है। लेट्स से दैट यू log into your account using the Gmail on this website and you can download the codes. And the I think I have answered this thing कि आपको कंपाइलर कौन सा लेना चाहिए। सर हाँ जी सर डेव सी प्लस प्लस एक्चुअली इंस्टॉल करने के बाद वो रन ही नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि और कोई अल्टरनेटिव है या गिव मी वन मेरे सेकंड। लैपटॉप पे इट इज नॉट रनिंग। गिव मी चल वन रहा है, वर्क कर देखो रहा है। सुनो मैं रीजन बताता हूँ क्या हो सकता है। आपने क्या करा होगा, लेट्स से मैंने कंट्रोल एन करके यहाँ पे न्यू कोड लिखा, या फिर आप यहाँ से भी कर सकते हो फाइल न्यू, ठीक है, सोर्स फाइल। तो आप Yes, न्यू sir. न्यू सोर्स फाइल करोगे तो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हो। व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दिस कोड एज इट इज। तो मैं आप थोड़ा सा टाइम बचाता हूँ। copy this code from the online compiler to at this place and now I have to save. अब सेव करते हुए there is one thing that you need to take care of. Can you see my save as screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you have to save it using the .c extension, not the cpp. ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको फर्स्ट प्रोग्राम नाम का यहाँ पे कोड लिखूं, फर्स्ट प्रोग्राम, तो .c करना पड़ेगा एंड यहाँ पे सेव एज टाइप में भी c सोर्स फाइल कर लेना। हो सकता है कि आपने क्या किया हो कि आपने .cpp ही रख लिया हो, तो उसमें क्या हुआ हो कि वो printf पिक नहीं करेगा। कोड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर ही नहीं रन कर रहा है। तो फिर When आप I click on dev C++, ओके it is तो not opening. लेट्स डू वन थिंग, हम अलग से इसको हैंडल कर लेते हैं। राइट नाउ यू कैन यूज द ऑनलाइन कंपाइलर फॉर नाउ। आई विल Yes, sir. हैंडल योर प्रॉब्लम लेटर ऑन, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर लूं सो दैट अदर पीपल कैन आल्सो स्टार्ट देयर वर्क एंड देन वी विल डिस्कस दिस थिंग लेटर ऑन। मैं आपका Yes, ये sir. सॉफ्टवेयर चलवा दूंगा। तो या So, हाँ जी कल एक डाउट था, वो .h आता है वो stdio में,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, वो डॉट एच क्या स्टैंड करता है हेडर फाइल, इट्स कि उसके हेडर अंदर फाइल। सारा सारा मेन कंटेंट इंक्लूडेड है? मतलब हेडर फाइल का ना अलग अलग हेडर फाइल होते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वाला है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इफ यू रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ stdio, इट इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। अब Yes, sir. स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मींस दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एक अलग से यहाँ पे समझा ही देता हूँ। फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, Yes, सो sir. हेडर फाइल क्या होता है? हेडर फाइल मींस दैट देर आर फ्यू कोड्स। अब जैसे यहाँ पे हमने कोड बनाएंगे हम, तो हमने एक मेन फंक्शन बनाया, राइट? तो मेन इज ए फंक्शन एंड दिस फंक्शन, देर आर अदर फंक्शंस ऑल्सो। अब जैसे यहाँ पे अगर कोई ध्यान से देखे तो printf इज ऑल्सो फंक्शन। ये जो ब्रैकेट्स है ना, राउंड ब्रैकेट, इट मींस इट इज ए फंक्शन। सो मेरा जो printf है, इट इज ए फंक्शन। ऐसी एक scanf होता है, इसका भाई है, वो भी एक फंक्शन है। तो ये बने बनाए फंक्शन पड़े हैं, वो कहाँ पे पड़े हैं? इस हेडर फाइल में, ठीक है? एंड दिस हेडर फाइल हैज दिस प्री डिफाइंड फंक्शंस एंड देयर आर आल्सो अदर फंक्शंस। getchar, एक getchar नाम का फंक्शन होता है, getchar, putchar। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी मेरे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में पड़े हैं, ठीक है? तो बिकॉज हमने तो सिर्फ मेन फंक्शन बनाया है टू गेट अ जॉब डन, बट बिकॉज वी वांट टू यूज printf, अगर मुझे इन चारों में से कोई भी एक भी यूज करना है, आई विल हैव टू इंपोर्ट द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। समझ में आ गया जी? Yes, sir. Yes, Clear, सर sir. सर तो बेसिकली जैसे पाइथन की लाइब्रेरी होती है वैसे ही काम करता है ये? हाँ, देखो अब पाइथन का ना, अब क्या है कि आजकल पाइथन बहुत फेमस है एंड इनफैक्ट आई हैव आल्सो वर्कड विद पाइथन अ लॉट इन माय पीएचडी। जनरली एमएल और जो हमारा डीप लर्निंग है या एआई है, इसमें पाइथन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? एंड इवन फॉर डाटा एनालिसिस, अगर आपने कोई डाटा एनालिसिस का जॉब करना है, या दीस डेज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन, तो उसमें पाइथन बहुत ज्यादा यूज हो रही है। बट फॉर देम देयर इज दिस वेरी फेमस लाइब्रेरी numpy. I hope you have heard about this. Yes, yes, sir. sir. Right? Yes, sir. So Yes, sir. NumPy is very very famous library. Its full form is numerical Python. तो जितने भी हमें मैथमेटिकल काम करने हैं पाइथन में, NumPy में सब अवेलेबल है। एंड अगर आप उसका थोड़ा सा और पीछे जाओगे तो NumPy is developed in C programming on the back end, ठीक है? तो C is the mother of all languages, ऐसे नहीं बोला जाता, C सच में दमदार है। अब क्या है कि हम पाइथन की डिटेल में तो नहीं जाएंगे इस लैब में, बट आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दिस बिकॉज यू पीपल शुड नो दैट C इज वेरी पावरफुल। अब आई थिंक अगर आपको कोई और डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, देन आई विल मूव अहेड। सर हमें कोई लैब मैनुअल बनानी पड़ेगी जैसे फिजिक्स और केम के लिए बनाना पड़ रहा था हमें? प्रेफरेबली यस, ठीक है? मतलब वो आप लोगों का ही फायदा होगा। लेट्स से दैट आपने जैसे अभी +1 +2 किया है, राइट? तो अगर आपके नोट्स बने हुए थे तो एंड मोमेंट पे आपको पढ़ना आसान हो गया, रिवाइज करना आसान हो गया, एंड यू कुड परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। जिस सब्जेक्ट के आपके नोट्स नहीं थे या चैप्टर के नोट्स नहीं थे, तो वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा एंड मोमेंट पे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट? यस सर ऑनलाइन सेव कर सकते हैं कोड जो बनाएंगे, उसमें जरूरत थोड़ा कि हमने रिटर्न हैंड रिटर्न हाँ, ऑब्वियसली, यस यस, आई डोंट वांट द प्रिंटआउट्स फॉर नाउ। हाँ। अगर ऐसा कुछ होगा तो एंड मोमेंट पे बता दिया जाएगा, बट मेंटेन योर गूगल ड्राइव, ठीक है? आप अपने गूगल ड्राइव पे पर्सनली सारे कोड्स को सेव करो, ठीक है? जैसे लैब 1 का अगर असाइनमेंट 1 है, तो असाइनमेंट 1 का एक पीडीएफ बना लो, ठीक है? ये असाइनमेंट 1 का पीडीएफ होगा, उस पीडीएफ को आप सेव कर लो अपने गूगल ड्राइव में, एक फोल्डर बना लो UTL-003 का, ठीक है? पर्सनली मैं तो ऐसे ये सब करता हूँ। इवैल्यूएशन में तो नहीं होना ना कुछ? इवैल्यूएशन में एक चीज हो सकती है, व्हाट आई विल डू इज, मैंने अभी कोऑर्डिनेटर सर के साथ डिस्कस नहीं किया, बट प्रेफरेबली, मतलब जैसे मैं एमएल पढ़ा रहा हूँ तो मैं कोऑर्डिनेटर हूँ वहां पे, तो व्हाट आई प्रेफर इज, मैं आप लोगों को सपोज कोई असाइनमेंट दूंगा, ठीक है? तो वो असाइनमेंट का मैं एक आपके साथ LMS लिंक शेयर कर दूंगा, जैसे मैंने LMS पे डाल दिया दैट यू हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट हियर, और मे बी मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा कि आप लोगों को अपनी असाइनमेंट 1 यहाँ पे सेंड करनी है। तो आप अपना नेम, रोल नंबर और वो पीडीएफ अटैच करके उस गूगल फॉर्म पे अपलोड कर देना, तो मेरे पास गूगल ड्राइव पे सबके आपके पीडीएफ आ जाएंगे, ठीक है? एज असाइनमेंट 1। तो ये इतना हो सकता है, ठीक है? इतना होने का काफी हाई प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आप कहो कि आपकी पूरी लैब फाइल का प्रिंट आउट मैं लूंगा, उसका प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत लो है, ठीक है? तो फिजिकल वर्क तो हम नहीं लेंगे आपसे, बट देर इज ए वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट आई विल गेट द डिजिटल असाइनमेंट फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ दिस गूगल फॉर्म एंड एवरीथिंग।
यस तो लैब मैनुअल नॉर्मल नोटबुक चलेगी ना, वो ब्लैंक पेज वाली, ब्लैंक पेज एक साइड पे ब्लैंक पेज और एक साइड पे अरे रूल्ड की जरूरत नहीं है अरे ना? अरे डियर, आई एम सेइंग कि मुझे वो सब चाहिए ही नहीं अभी, तो ऐसा कुछ मैंने बोला ही नहीं है कि चाहिए। अगर इन दी एंड कुछ चाहिए भी होगा, आप लोग क्या करना, लेट्स से कि आपको मैंने बोला कि यार मेरे को 10 प्रोग्राम का एक फाइल दे दो, ठीक है, तो बस आप उसका प्रिंट आउट निकाल के मेरे को दे देना। ऐसे ओके सर, हैंड रिटन नहीं चाहिए मेरे को, ओके ठीक है। सर, हाँ, यस सर। यस। सर हम Excuse me, लोग sir. अपने रिवीजन के लिए सारे असाइनमेंट के कोड्स एक जगह कंपाइल करते जाएं, यू मीन टू से लाइक? हाँ, यस यस, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि आप अपने रिवीजन के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज व्हेन यू विल बी गिविंग योर इवैल्यूएशन, तो देयर माइट बी ए केस कि आपको वहां पे कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, लेट्स से आपको फिबोनाची का आ गया, ठीक है, आपको यस सर। फिबोनाची के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेट्स से आपको फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम आ गया बनाना, तो अगर आपने असाइनमेंट में काम करा होगा तो देयर इज ए वेरी हाई चांस कि आप फिबोनाची वाला भी बना लोगे, ठीक है। यस सर। यस सर। Excuse me, sir. यस सर जैसे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं, क्या ऐसे सी में काफी सारी हेडर फाइल्स हैं? यस यस, तो मैं इनफैक्ट आज उस पे भी आने वाला था, जैसे आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है, ठीक है। अब एक और बात नोटिस करो, मैंने यहाँ पे एंगल ब्रैकेट डाले हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं डाला, मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट नहीं डाला, राउंड ब्रैकेट नहीं डाला, हर चीज का यहाँ पे अलग अपना फंक्शन है। जितने भी हमारे हेडर फाइल्स होंगे उनको हम ऐसे करके एंगल ब्रैकेट्स में ही डालेंगे, ठीक है। अगर जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, एक टॉपिक एरे नाम का टॉपिक आएगा, हम उसमें एरे में ये यूज करेंगे। जो ये मेरे करली ब्रैकेट्स हैं, करली ब्रैकेट्स मेरे फंक्शंस के लिए काम आते हैं। अब जैसे आपने नोटिस किया होगा, आई हैव दिस थिंग, मेरा जो ये मेन फंक्शन है, आई हैव करली ब्रैकेट्स, तो ये करली ब्रैकेट में मैं जो भी लिखूंगा, मैं यहाँ पे 2 लाइनें लिख रहा हूँ या मैं यहाँ पे 1000 लाइनें लिख रहा हूँ, तो ये मेरे करली ब्रैकेट विल डिसाइड द बाउंड्री ऑफ माय फंक्शन, ठीक है। तो करली ब्रैकेट्स हैव दिस स्पेसिफिक फंक्शन के भाई मेरे को तो इस फंक्शन की बाउंड्री के लिए ही यूज करना है, तो ये मेरा एक तरह का स्कोप डिफाइन करता है कि मेरे प्रोग्राम का, मेरे फंक्शन का स्कोप क्या है। एंड दिस राउंड ब्रैकेट हैज ए फंक्शन के भाई ये फंक्शन के साथ ही यूज होता है, तो वो फंक्शन चाहे प्रिंटफ है चाहे स्कैनफ है, ठीक है, आपने ये सब तो देख ही लिया, स्कैनफ मैं अभी करवाऊंगा थोड़ी देर में, एंड ऑल्सो मेन फंक्शन। तो जितने भी फंक्शन है उनके साथ हम हमेशा राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। तो देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन ऑल द, यहाँ पे तो ये गलत हो गया, देयर इज दिस डिफरेंस बिटवीन ऑल द ब्रैकेट्स, square brackets are used in array, curly brackets are used for the scope of the function, round bracket are used for defining a function, curly this what's this angled brackets are used for defining the libraries, ठीक है। तो सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, वैसे तो लेट मी शो यू द असाइनमेंट ऑल्सो, जो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों से असाइनमेंट मुझे लेनी है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन, आई हैड ओपन्ड इट अर्लियर, तो ये है आपकी असाइनमेंट 1। तो दीज आर द फ्यू वेरी वेरी स्मॉल प्रोग्राम्स, इसमें से आधे तो मैंने अभी बना देने, आपको 10 मिनट में मैं समझा दूंगा कि क्या करना है एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो लेट मी एनोटेट एंड एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स हियर। सो हेलो वर्ल्ड का तो प्रोग्राम आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इवन ऑन द कंपाइलर, बट देन इफ आई वांट टू write a program to input a integer or maybe input a decimal number, input a character, input a fraction, so all these things will be यूजिंग scanf। तो इसमें हम scanf यूज करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ printf देखा है, बट आई विल बी टीचिंग यू कि मुझे scanf कैसे यूज करना है, क्योंकि जहां पे भी इनपुट वर्ड आ गया, इनपुट का मतलब है कि मुझे एक इनपुट देना है, व्हेन द प्रोग्राम विल बी रनिंग आई विल बी गिविंग द इनपुट। अब हमने वहां पे printf में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड देखा था, ठीक है, तो जो मैंने हेलो वर्ल्ड देखा है, अगर मुझे ये वाला स्ट्रिंग चेंज करना है, और मुझे लेट्स से देयर इज ए टेक्स्ट फाइल जहां पे मुझे 1000 मेरे पास स्ट्रिंग पड़े हैं, देयर आर डिफरेंट सेंटेंसेस, तो मुझे वो सेंटेंसेस पिक करवाने हैं, तो वन बाय वन वो इनपुट लेना पड़ेगा, मैनुअली तो मैं नहीं लिखूंगा। अब 1000 चीजें यहाँ पे एक फाइल में पड़ी हैं, सपोज मेरी कोई फाइल पड़ी थी a.txt, तो मेरी ये नोटपैड में खोल के मेरे को पता चला कि देयर आर 1000 सेंटेंसेस दैट आई वांट टू रीड, तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लेक्स अभी आएगा नहीं, एटलीस्ट फॉर 4-5 लैब्स, ये थोड़ा सा एंड में आएगा। दिस इज काइंड ऑफ फाइल हैंडलिंग, ये आपका लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो दिस इज द एंड गोल कि आप एक
आपके पास कोई फाइल है .txt फाइल है जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, लेट्स से 1000 सेंटेंसेस हैं, तो आप उनको वन बाय वन रीड करवा के अपने प्रोग्राम में कुछ काम करवा पाओ, तो वो सब आपका एंड में आएगा, अभी तो इसका ऐसा कुछ नहीं है। तो इनपुट का मतलब है यूजर इनपुट, ठीक है। जैसे सपोज आई डिक्लेयर ए वेरिएबल, अब मैं वेरिएबल क्या होता है, ये इंट क्या होता है, इस पे भी आता हूँ एक सेकंड में। बट आई वांट टू गिव दिस नंबर, या तो मैं यहाँ पे लिख दूं कि भाई a इक्वल टू 10 है, और a इक्वल टू 10 के बाद आई वांट टू गेट इट प्रिंटेड, कि मुझे प्रिंट करना है। अब बिकॉज ये इंटीजर है तो यहाँ पे %d आएगा, आई विल कम टू दिस के %d क्या होता है, एंड देन प्रिंटिंग a। तो अगर मैं इतना लिख के मेन फंक्शन में प्रिंट करवाऊंगा तो मेरा सिर्फ a हमेशा 10 ही प्रिंट करेगा। बट देन इफ आई वांट टू चेंज दिस नंबर एवरी टाइम, लेट्स से ये मैंने 5 बार प्रोग्राम रन किया और पांचों बार मुझे अलग अलग नंबर देना है, लेट्स से 10 20 30 40 50, तो वो जो हमारे पास फ्रीडम आएगी फॉर गिविंग मल्टीपल नंबर्स, वो मेरी आएगी स्कैनएफ से। स्कैनएफ विल गिव मी द फ्रीडम के मैं अपनी पसंद का कोई नंबर दे सकता हूं एज ए इनपुट इन माय प्रोग्राम। तो हम ये सब अभी हैंडल करेंगे, 5 मिनट का काम है ये। आफ्टर दैट वी विल मेक वन स्मॉल प्रोग्राम, आई विल एक्सप्लेन यू कि ये कैसे बनाना है, ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह बहुत आसान है। यू विल मेक दिस फॉर फाइंडिंग द nth रूट। nth रूट का मतलब है, लेट्स से आई वांट टू गेट द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैन एनीवन टेल मी? n raised to नहीं number raised to 1 by n. 1/2 1/2 होगा। देखो 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। अब n का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये मेरा स्क्वायर ऑफ ए नंबर है, यस और नो? yes sir Yes, sir. तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं मेरा स्क्वायर रूट निकालना है तो 1/2 आ जाएगा पावर में। बट nth रूट का मतलब है कि मेरा कोई नंबर है, लेट्स से a 1 by n. 1 by n, यस, कोई मेरा नंबर a है, उसका मुझे 1 by n निकालना, तभी मेरा nth रूट आएगा, है yes ना? sir तो ये Yes, कुछ बेसिक चीजें हैं, हम इसको आज इंप्लीमेंट कर लेंगे, बहुत आसान चीजें हैं। एरिया ऑफ ए सर्कल कैसे निकालते हैं, पाई आर Pi r स्क्वायर। square. तो Yes, yes. पाई आर स्क्वायर का भी हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, बहुत कुछ आज करने वाला, बड़ा मजा आएगा। और अगर आपको कहीं पे कुछ समझ नहीं आएगा, यू कैन आस्क मी, यू कैन स्टॉप मी एनी टाइम, ठीक है जी। तो हम Okay. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी हेलो वर्ल्ड Sir? से। हाँ जी, सर जैसे VS कोड के साथ जैसे minzetw करते हैं इंस्टॉल, तो devcc के साथ कुछ करना है, devc++ के साथ? देव C++ के साथ जनरली कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना होता, मैंने भी जैसे कल इंस्टॉल करा है, मैंने 4-5 साल पहले फिर आई इसमें थॉट इनबिल्ट कंपाइलर है, हाँ VS कोड के साथ एक्सटर्नल लेना पड़ता है। यस। तो C++ का ये मतलब देव C++ सॉफ्टवेयर है या फिर सी प्रोग्रामिंग भी है। इफ यू वांट टू गेट दिस वर्क डन इन देव C++, आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, जस्ट आपको एक चीज का ख्याल रखना है। आई विल शो यू दैट वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। यहाँ पे जब हम कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो यहाँ पे ना टॉप पे लिखा हुआ है कि हमें कौन सा यूज करना है, ठीक है। जैसे ये TDM GCC लिखा हुआ है तो मैं इसका बाय डिफॉल्ट बेसिक वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे सी प्रोग्रामिंग में काम करना है, दिस वर्क्स। एंड अगर मुझे C++ का कोड बनाना होगा, वी विल लुक इनटू दैट ऑन द इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, C++ आएगा। तो जनरली तो काम हो जाता है ऐसे ही, बस आपने सेव करते हुए यू नीड टू टेक केयर ऑफ द एक्सटेंशन फाइल कि आप .c कर रहे हो या .cpp कर रहे हो, ठीक है जी। Right, sir. Yes, let's come back to this. Let's say that you open this website online GDB, आप अपने एंड पे भी स्टार्ट कर लो इसको यूज करना, because we will be running these things now. I will quickly go through first few programs, ठीक है, 2-4 प्रोग्राम मैं बना देता हूँ। Then I expect कि आप add subtract का बनाओगे, मैं आपको explain कर देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। I want to give you one small thing before that. So if you want to get your work done for a integer, अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई थी उधर क्वेश्चंस में। integer का काम है, एक float है, एक character है, ठीक है। तो मुझे अगर ये सब यूज करना है तो एक इसमें ना वेरिएबल नाम की चीज होती है। इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर डिफरेंट वेरिएबल्स। अब जैसे पाइथन वालों को तो पता होगा कि हमने अगर a = 10 प्रिंट करवाना है तो आप a = 10 करो, अगली लाइन में a लिखो, काम हो जाता है, इतने से काम चल जाता है। पर सी थोड़ी सी भयंकर है कंपेयर टू पाइथन। पाइथन बहुत स्लो है। अब वो स्लो होने का रीजन भी यही है दैट पाइथन में ना बहुत सारी चीजें इनबिल्ट हैं बैक एंड पे, तो वो आपको वहां पे stdio.h तो नहीं लिखना, बट वो बाय डिफॉल्ट पीछे से वो सब यूज कर रहा है और उसको उतनी चीजों में ढूंढने में टाइम लग जाता है। तो बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज बिहाइंड पाइथन, तो वो स्लो भी बहुत हो जाता है क्योंकि वो बार बार पीछे जाएगा, वहां से कुछ उठा के लेके आएगा, तो उसको आने जाने में टाइम लग रहा है, तो पाइथन स्लो हो जाती है कंपेयर टू सी प्रोग्रामिंग।
So now let's talk about these different variables, integer, float and char. एक और मैं चीज यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ. Yesterday in my first lecture there were few comments that I read later on after ending the session. I went through the chat कि बच्चों ने क्या लिखा हुआ है वहां पे, किसी को क्या दिक्कत आ रही है. तो एक दो बच्चों ने लिखा कि मेरे को तो बहुत भयंकर लग रही है ये, इट इज वेरी इंटिमिडेटिंग, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग टू कोड इन सी प्रोग्रामिंग एंड मेरे लिए तो ये सब कुछ नहीं हुआ, तो मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा. एक बंदे ने लिखा कि मैंने पहले जावा करी हुई है, शुड आई लर्न सी प्रोग्रामिंग और गो अहेड विद द एडवांस जावा. तो टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई वुड से जावा करी है, पाइथन करी है, वो आपने अलग से कर रखी है, दैट्स ए गुड थिंग. बट फॉर दिस सब्जेक्ट यू नीड टू गो थ्रू द सी प्रोग्रामिंग. आपको ये सीखना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे. बिकॉज आई हैव सीन इन पास्ट फ्यू स्टूडेंट्स हु से मुझे सी आती है, ठीक है. अब उनके हिसाब से सी कितनी आती है मुझे नहीं पता उनको, लेकिन दोज हु से कि मुझे सी आती है और मैं जावा या पाइथन सीखना चाहता हूँ, मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, स्पेशली यू पीपल आर फ्रॉम सीओई. तो सीओई वालों को तो थोड़ा सा पता भी ज्यादा होता है, या पता चल जाएगा अभी 6 महीने में आपको पता चल जाएगा. यू विल टॉक टू योर सीनियर्स एंड यू विल गेट टू नो कि आपको कुछ सोसाइटीज ज्वाइन करनी है. थापर में सीएस सोसाइटी है या और कोई सोसाइटी है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ सोसाइटीज. आप ज्वाइन करोगे, आपके कॉन्टेक्ट्स बनेंगे एंड यू पीपल विल से कि यार मेरे को तो आता है ये मैं कर लूंगा. बट इन द एंड ऐसा मैंने देखा है, दोज पीपल हु आर सेइंग टुडे कि उनको सी आती है तो उनके 60 या 70 मार्क्स आते हैं, और जो बंदा बिगिनिंग से अभी सीखना शुरू करेगा उसको कुछ भी नहीं आता. आई हैव सीन द केसेस उनके 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं. मतलब क्या कि कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस की बात है. इस बंदे ने मेहनत करी, वो 90 से ऊपर पहुंच गया. जिसको लगता है, आई एम अगेन सेइंग, उसको लगता है कि उसको सी आती है, उस केस में वो बच्चा 60-70 पे रह जाता है. और इसमें ना फ्रॉम एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर हमेशा टफेस्ट होता है. वाई? बिकॉज यू डोंट नो आपको एग्जाम किस लेवल का आएगा, आपको ये नहीं पता कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि स्कूल का लेवल अलग होता है, कॉलेज इज डिफरेंट, ठीक है. एंड आप लोग क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं मेरा हो जाएगा, बट इन दी एंड आपको एक झटका ऐसा लगता है कि फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरे बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 68% मार्क्स थे फर्स्ट सेमेस्टर में. हमारे परसेंटेज था, ग्रेड नहीं था. तो आफ्टर दैट मेरे बाकी सब सेमेस्टर्स में 70 से ऊपर आया, कभी 72 आया, कभी 75 आया, कभी 78 आया. बट ये वाला जो था ना सबसे फर्स्ट सेमेस्टर, इसने मेरे को हमेशा हर्ट ये किया कि मेरी ओवरऑल परसेंटेज हमेशा कम रही, बिकॉज मेरा फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा घटिया था. तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई एम सेइंग कि कभी भी एज्यूम मत करो कि आपको आता है. डू द जॉब. आपको जितना लगता है आपको आता है, गुड थिंग. नहीं आता या कुछ नया है तो उसको मन लगा के सीखो, यू विल लर्न मोर. कमिंग टू दीज 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स. अब यहाँ पे वेरिएबल होते हैं, ठीक है. एक इंट वेरिएबल है, ऐसे ही एक फ्लोट वेरिएबल है, एक कैर वेरिएबल है. तो अगर आप उसको डिक्लेयर करोगे, अब इसमें ना मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनको साथ के साथ समझा दूं. डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, these are the 2 words that I want to explain first. अब क्या होता है कि जब आपने सी प्रोग्रामिंग करना चाहा और आपने कुछ प्रोग्राम बनाना है, लेट्स से यू वांट टू मेक ए प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है. अब ये ऐड 2 नंबर्स कहने को तो चलो 2 नंबर्स को एडिशन कर रहे हैं, काफी आसान है, बट बैकएंड पे वो कैसे काम करेगा मैं उसका एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा. अभी मैं हैश इंक्लूड वगैरह कुछ नहीं लिख रहा, इंट मेन कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ अंदर की बात लिखता हूँ. मुझे 2 नंबर लेने हैं, इंट ए और बी, और एक मुझे सम के लिए लेना है इंट सी. तो मैं इंट सी, अब इंट ए बी सी 3 बार भी लिख सकता था, मैं इंट ए और बी इकट्ठा लिख के इंट सी अलग से भी लिख सकता था, या फिर मैं इसको कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इंट ए बी सी, ठीक है. बात ये है कि मुझे इन तीनों के नाम रखने पड़े हैं, 3 वेरिएबल यूज करने हैं, एंड ऑल ऑफ देम बिलोंग टू दिस इंटीजर कैटेगरी. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर्स आर द नंबर्स, ठीक है. ये एक तरह के नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें पॉइंट्स नहीं आते, ठीक है. तो इफ आई एम सेइंग कि मुझे अब इसको स्कैन एफ करवाना है, स्कैन एफ पे आऊंगा, अभी आ रहा हूँ एक सेकंड में. स्कैन एफ %d और यहाँ पे %a. अब ये % एक न्यू चीज आ गई है, तो उसके ऊपर भी आते हैं एक सेकंड में. यू कैन डू दिस काइंड ऑफ अ थिंग एंड आप मतलब एक का भी करवा सकते हो, 2 भी इकट्ठे करवा सकते हो, तीनों इकट्ठे भी करवा सकते हो. तो मैं आपको यहाँ पे 2 के हिसाब से करता हूँ. चलो, वैसे तो मुझे सम करवाना था तो मैं ये वाला इनपुट नहीं लूंगा. सर ये % d एक्सप्लेन कर दो.
अभी कर रहा हूँ, बस 1 सेकंड दो यार। ओके सो बी, अब यहाँ पे इन 3 लाइन के बाद मैं लिखूंगा C इक्वल टू A प्लस बी और printf %d C। अब इतनी सी लाइन लिखने पे ऑब्वियसली वो इंट मेन वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। इंट मेन लिखोगे, उसके नीचे यहाँ पे रिटर्न 0 लिखोगे। रिटर्न 0 थोड़ा ऑप्शनल होता है पर लिख देना, अच्छी चीज होती है। इसके ब्रैकेट डिफाइन करोगे इंट मेन में ये है, ऊपर हैश इंक्लूड वगैरह लिख लेना अपने आप। तो अब यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया कि ये %d क्या होता है, और ऐसे ही एक बंदा पूछेगा कि एम्परसेंड क्या होता है। सो आई एम कमिंग टू दिस नाउ। अब क्या है कि मुझे जब भी प्रोसेसिंग करवानी है printf में या scanf में, इनके ना इंट हो गया तो इंट का %d यूज करेंगे कि भाई इंट को अगर यूज करना है तो %d आएगा कोड्स के अंदर। अब इसका ध्यान रखना कि जब भी हम scanf में या printf में काम कर रहे हैं तो हमेशा कोट्स लगाते हैं। डबल कोट्स होगा, ये सिंगल कोट लगाओगे देन देयर विल बी एरर। ठीक है जी। तो अब व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू डिफाइन एक सिग्नल देना है, क्योंकि अब देखो यार प्रोग्रामिंग हम कर रहे हैं, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, पर वो रन कौन कर रहा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर ने अपने एक बैकएंड पे भाषा बनाई हुई है, देयर इज अ लैंग्वेज फॉर इट। तो उसने बिकॉज ऑफ द सी प्रोग्रामिंग एक सिंबल डिफाइन कर दिया कि मुझे जब भी तुम चाहते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, तुम चाहते हो कि मैं इंटीजर के साथ काम करूं, तो मुझे एक सिग्नल दे दो कि भाई %d। तो %d का मतलब है कि मैंने एक सिग्नल दिया इसको कि मुझे इंटीजर के साथ काम करना है। सिमिलरली अगर मुझे फ्लोट के साथ काम करना होता तो मैं %f लिखता, अगर मुझे कैरेक्टर के साथ काम करना होता तो मैं %c लिखता। ठीक है जी। तो अब इनमें क्या फर्क है इसका भी थोड़ा सा फटाफट बताता हूँ। %d इज इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं जी? 1 2 3 -1 -2, ये सब इंटीजर हैं। तो फ्लोट क्या होता है? %f क्या कब यूज करेंगे? जब मुझे नंबर ऐसे करने हैं, Decimal. 1.25 1.357। तो मतलब ऐसे कोई भी नंबर है तो 2.142 ऐसे कुछ करके नंबर है, तो जितने भी पॉइंट्स वाले नंबर हैं जिसमें भी डेसिमल आ रही है, डेसिमल प्लेस आ रही है, तो वहां पे मैं बोलूंगा कि ये मेरा %f है, पर फ्लोट है। ऐसे ही जो मेरा कैर है, कैर इज माई %c। कैरेक्टर क्या होते हैं? कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। या फिर मुझे और क्या होता है, जैसे कोई एक नंबर ही देना है एज ए करेक्टर। अब इसमें मैंने 1 2 3 लिख तो दिया, पर इनका ना जितने भी करेक्टर हैं इनको हम हमेशा सिंगल कोट्स में डालते हैं। तो सिंगल कोट्स में 1 2 3 आ रहा है तो वो करेक्टर है, बिना कोट्स के आ रहा है तो वो एक इंटीजर है। इस चीज का बहुत ध्यान रखने की चीज है। ठीक है। तो मतलब अगर आपने %d डाला और आपने यहाँ पे 1 डाल दिया तो वो एक इंटीजर है, बट अगर आपने %c डाला और आपने इनपुट दिया 1 तो वो ऐसे वाला 1 है, सिंगल कोट्स वाला, तो वो 1 एज ए करेक्टर उठाएगा। ठीक है जी। सर अगर किसी को कैरेक्टर कुछ स्ट्रिंग जैसा होता है। स्ट्रिंग करेक्टर, करेक्टर इज ओनली 1 करेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। तो मतलब क्या है कि अब आपने स्ट्रिंग की बात छेड़ी है, तो एक इसमें %s भी होता है, %s इज स्ट्रिंग। तो वहां पे क्या होता है कि हम डबल कोट्स में जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा था तो वो मेरा स्ट्रिंग था, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड इज ए स्ट्रिंग वेयर देयर इज ए कलेक्शन ऑफ 11 करेक्टर्स। 5 करेक्टर ये हो गए, 5 वर्ल्ड के हो गए, और 11वां मेरा ये बीच में स्पेस आ गया। ठीक है। तो ये 11 करेक्टर्स मिलके एक स्ट्रिंग बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड का, तो वो %s है, वो स्ट्रिंग है। फर्क समझ में आ रहा है? जब भी हमें एक से ज्यादा करेक्टर इकट्ठे करने हैं तो डबल कोट्स आएंगे। ठीक है। सिंगल करेक्टर यूज करना है तो सिंगल कोट आएगा। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो। यू आर बिगिनर, आप लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी हो सकता है। सो आई वुड प्रेफर कि आप, अगर आपके पास कोई डाउट आ रहा है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। इनफैक्ट अब मैं एक रैंडमली सब में से रैंडमली किसी को पूछूंगा, तो यू हैव टू अनम्यूट एंड एक्सप्लेन। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सर एक क्वेश्चन था। एक्सक्यूज मी हाँ, सर। मेरा हाँ, तब सो ये जो परसेंटेज हम यूज करते हैं स्कैनएफ के साथ करते हैं या प्रिंटएफ के साथ या दोनों के साथ? दोनों के साथ। अब देखो सिंपल सा फंड है यार, मतलब इस चीज को याद रखो कि मुझे जब भी printf या scanf के साथ इंटीजर को यूज करना है तो मुझे एक सिग्नल देना पड़ेगा कोड्स के अंदर कि अगर मैंने %d लगाया है तो वो इंटीजर की बात कर रहा है scanf में, अगर मैंने %d यहाँ पे लगा दिया तो वो printf में इंटीजर की बात कर रहा है। कोर्स के अंदर %d आएगा ही आएगा या %f आएगा ही आएगा। जिसमें भी आपने काम करवाना, चाहे वो scanf है चाहे वो printf है, इट विल रिक्वायर दिस सिग्नल फ्रॉम द यूजर, फ्रॉम अस द प्रोग्रामर्स, कि मुझे किसके साथ काम करना है। हाँ जी पूछो। सर तो जब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया था तब हमने ये सब क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि डिफॉल्ट है क्या? जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग में क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट है क्या?
नहीं नहीं डिफॉल्ट कुछ भी डिफॉल्ट नहीं होता। अब मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया अभी, प्रिंटफ में हमने %d क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए इंटीजर नहीं चाहिए था। नहीं सर, एज फॉर द मैटर कि हमने स्ट्रिंग के लिए %s पे क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे एज इट इज, देखो क्या है, अब ये मेरा यूजर मैसेज है, ठीक है। अब अगर ऐसा होता कि मैं करता कि जी स्ट्रिंग एस, मैं उतना कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं चाहता, बट आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। अगर मैं करता स्ट्रिंग एस इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन आई एम गोइंग टू प्रिंट द स्ट्रिंग। अब इसको यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। वन मोर थिंग टू टेक केयर कि यहाँ पे सेमीकोलन ही आता हमेशा एज एंड ऑफ द स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग। और यहाँ पे मैं अब करता प्रिंट एफ %s और यहाँ पे मैं करता s, ठीक है। अब स्ट्रिंग इसको मैं नाम रख लेता हूँ कैपिटल S। तो स्मॉल s और कैपिटल S अलग होंगे। तो जो स्मॉल s है %s में अंदर लिखता, अगर मैं ये 2 लाइनें लिखूं तो मेरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मैंने ऐसे करके स्ट्रिंग अलग से प्रिंट कराना है फिर तो मैं %s लिखूंगा, लेकिन अगर मुझे डायरेक्टली कोई मैसेज प्रिंट कराना है तो मैं सीधा कोट्स में लिखूंगा, मुझे %s की जरूरत ही नहीं है। यस और नो? यस यस सर, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया तब तक यूज ही क्यों करो? हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली अगर मुझे सिंपल एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि यार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दो, या फिर चलो एक एग्जांपल अभी ऊपर मैंने लिया था दैट आई वांटेड टू डू दिस प्रिंटिंग ऑफ सम, तो मुझे सम ऑफ 2 नंबर्स बनाना था। सम ऑफ 2 नंबर्स में आई वांटेड टू गेट द वर्क डन। मैंने क्या किया, मैंने सी में एक जो थर्ड वेरिएबल लिया था उसमें मैंने c इक्वल टू a+b का काम किया और मैंने वो प्रिंट करवा दिया यहाँ पे %d_c। अब मैं इस लाइन को, जो ये प्रिंटफ वाली लाइन है, मैं कलर चेंज करके बात करता हूँ 1 सेकेंड। हाँ, तो जो ये प्रिंटफ वाली लाइन है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, प्रिंटफ सम इज %d_c खत्म। तो इसका आउटपुट क्या आता? लेट्स से मैंने a यहाँ पे 10 दिया था, b इक्वल टू 20 दिया था, तो सिर्फ ये वाली लाइन से प्रिंट आउट आता, फर्स्ट वाली लाइन से। ये मेरी लाइन 1 है, ये मेरा दिस इज माय सेकंड प्रिंटफ। तो फर्स्ट प्रिंटफ का जो आंसर आता है वो आता 30, सिर्फ 30। जो ये सेकंड प्रिंटफ है इसका आउटपुट क्या आएगा? सम इज :30। ठीक है जी। इसमें क्या हो रहा है, अब यहाँ पे भी यही हो रहा था, जब हम ये प्रिंटफ के अंदर %d दिया या मैंने स्कैनफ के अंदर %d दिया, तो जो ये वाला मेरा वैल्यू था इधर का वो उठ के इधर आके रिप्लेस कर गया। सिमिलरली सी वाला यहाँ पे रिप्लेस कर गया, सिमिलरली ये वाला सी यहाँ पे आके रिप्लेस कर गया, तभी पूरा सेंटेंस प्रिंट हुआ सम इज 30, क्योंकि उसने सी ने आके %d की जगह ले ली। सिंपल टू अंडरस्टैंड? तो वो सर, तो रिप्लेस वाला एक बार बता दो। अभी बता रहा हूँ। इन लाइन में एम्परसैंड यूज करने की जरूरत नहीं है ना? स्कैनफ में एम्परसेंट यूज करेंगे, ठीक है, अच्छा अच्छा, स्कैनर। स्कैनफ में करेंगे। अब देखो मुझे एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे तुम में से, कि सपोज मुझे प्रिंटफ, मैंने यहाँ पे लिखा %d और यहाँ पे लिखा c, या फिर मैंने लिखा प्रिंटफ सम इज %d। अब यहाँ पे कॉलन लिखूं ना लिखूं वो एज इट इज वैसे प्रिंट कर देगा, तो मैं यहाँ कॉलन नहीं डाल रहा अभी, तो यहाँ पे c आएगा सच कॉमा डाल के। तो कॉमा और c तो यहाँ पे भी आना था, कॉमा और c यहाँ पे भी आना था। मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, हौच पौच हो गया। 1 सेकेंड, यहाँ पे c आएगा जी, ऐसे करके आ गया। अब देखो मैंने सिर्फ प्रिंटफ %dc लिखा तो मुझे आउटपुट आया 30, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो जो ये वाला c है इसको जाके रिप्लेस कर रहा है, मैंने बताया नहीं था, बट इन दी एंड वो रिप्लेस ही कर रहा है। देखो प्रिंट तो उसने इन कोड्स को ही करना है, उसने कोड्स का ही काम प्रिंट मारना है, उसके बाहर आप कुछ भी लिखोगे वो उसको वहां पे यूज कर लेगा अंदर। इट इज काइंड ऑफ के मैंने यहाँ पे एक गेस्ट को इनवाइट किया, वो गेस्ट बाहर से आके जगह लेके बैठ गया, ठीक है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पे ऊपर उसने जगह ली थी, नीचे भी वैसी जगह ले लेगा, तो सम इज 30। अब इस बार कॉलन नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर कॉलन नहीं डाला, यहाँ पे अगर मैं ये कॉलन नहीं डालूंगा तो यहाँ पे भी कॉलन नहीं आएगा। तो एक बारी हाँ जी, इस कोड को उसमें करके अभी दिखा दो। अभी करता हूँ, अभी करता हूँ। हाँ जी, डाउट पूछो पहले। सर ये बताइए, जो %d है ये कोई फिक्स टर्म है या फिर लाइक बिकॉज हमने d कुछ डिक्लेयर नहीं करा, कोई वेरिएबल है या क्या है? हमने d डिक्लेयर नहीं करा, बट मैंने int डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो int का काम करवाने के लिए %d होता है। तो प्रिंटफ और इसे याद कर लें बेसिकली कि इंटीजर का जब भी हमें यूज करना है तो हम %d यूज करेंगे। हाँ हाँ, मतलब देखो ये इतना बड़ा प्रोग्राम अगर हमने बनाना है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले कोड बनाता हूँ और फिर समझाता हूँ। इतना याद कर लो कि जब भी इंटीजर का काम करवाना है तो मेरे को %d लगाना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है,
ठीक है। ओके सर। अब देखो मैंने यहाँ पे ना वैसे तो ये पावर का फंक्शन बना के टेस्ट किया था, चलो इसको उड़ा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है, या फिर यहाँ पे गेट कर, चलो इसको उड़ाते हैं। लेट्स से अब मुझे इस कोड में जब मैंने ये ओपन किया तो मेरे पास ये कोड आया, मैंने वो printf हेलो वर्ल्ड हटा दिया। जब आप खोलोगे printf वाली लाइन हटा देना तो आपके पास ये आ जाएगा। रिटर्न 0 पहले लिख लेते हैं। रिटर्न 0 एक थोड़ा सा अच्छे कोडर की निशानी है, ठीक है। तो रिटर्न 0 का सिग्निफिकेंस क्या है? अभी बताता हूँ, 2 मिनट दो बस मेरे को, अभी समझा दूंगा 2 मिनट में। पहले हम ये करते हैं कि मुझे इंट ए, बी और सी करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने ना स्पेस दे दिया है, स्पेस दूं ना दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं स्पेस ना भी दूं तो भी काम चलेगा। अब इतनी एक लाइन लिखने से मेरे को ये तो पता चल गया कि मुझे इंटीजर यूज करना है, ठीक है। और इंटीजर यूज करने के लिए ये साइड पे क्यों आ रहा है, एक सेकंड दो मेरे को। ये पता नहीं कैसे जाएगा, चलो हट जाएगा अपने आप, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो इंट एबीसी, अब मुझे 3 इंटीजर लिए हैं मैंने यहाँ पे, दीज आर माई, ओके स्टॉप करूंगा पहले इसको, हाँ स्टॉप हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे ना डबल स्लैश डाला है, दीज आर द 3 इंटीजर्स, ठीक है। अब ये डबल स्लैश डालने का ये मतलब है कि मैं कुछ भी लिखूं इसके अंदर, ये मेरा एक कमेंट है, दिस इज ए यूजर कमेंट। अगर मुझे मल्टीपल कमेंट्स लिखने हैं कि मुझे 4-5 लाइन का कमेंट लिखना है, तो ये ऊपर देखो ध्यान से, ये भी कमेंट है। जो 4-5 लाइन का कमेंट होता है वो हमेशा स्लैश स्टार से शुरू होता है और स्टार स्लैश पे खत्म होता है। तो मतलब ये एक मैं एडवांस में चीज बता रहा हूँ इसको। सर एक बार सिंगल स्टार ना, स्लैश और एक सिंगल स्टार। स्लैश और सिंगल स्टार, पहले स्लैश आएगा फिर स्टार आएगा। यहाँ से क्या होता है कि आपका कमेंट शुरू होता है। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको ऑरेंज में इंक्लूड दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये यहाँ से हटा दूं, ठीक है, तो ये मेरा तो पूरा कमेंट बन पूरे का पूरा कमेंट हो गया। तो मेरे मल्टीपल लाइंस के कमेंट को शुरू करने के लिए मैं स्लैश और स्टार लगाऊंगा, खत्म करने के लिए स्टार फिर स्लैश और एंटर मारूंगा, तो ये मेरा नीचे कलर चेंज हो गया, इसका मतलब ये अब कमेंट नहीं रहा, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीपल कमेंटिंग। ये हो गया सिंगल लाइन कमेंटिंग। ये सिंगल लाइन कमेंटिंग कब काम आता है? ये काम आता है जी जब आपने अपने कोड को थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन करना है। और ऐसा होगा दैट लेट्स से दैट यू आर राइटिंग एग्जाम, तो अब एग्जाम में आप अपना प्रोग्राम बनाओगे। लेट्स से आपको एग्जाम में आया दैट यू हैव टू मेक वन प्रोग्राम टू डू द फिबोनाची सीरीज प्रिंटिंग। तो व्हेन यू आर डूइंग द वर्क विद द फिबोनाची सीरीज प्रिंटिंग, यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर वेरिएबल्स, यू विल हैव टू एक्सप्लेन योर स्टेटमेंट कि आपने ये कोड लिखा क्यों है। तो वहां पे आप विद इन द कोड यू कैन यूज दिस थिंग, यू कैन पुट डबल स्लैश एंड यू कैन गेट द वर्क डन, ठीक है। आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हो दैट दीज आर द 3 इंटीजर्स ए बी एंड सी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी एंड सी, तो ये मेरे हो गए 3 इंटीजर यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैंने काम करना है, तो लेट्स से मैं स्कैनएफ करता हूँ। स्कैनएफ में %d लगा लो, क्योंकि मुझे पता है दैट दीज आर द 3 इंटीजर्स। तो इंटीजर के साथ करना है तो मुझे %d यूज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अभी तक मैंने ये नहीं एक्सप्लेन करा कि मैं ये %a क्यों लगा रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आ रहा हूँ 1-2 मिनट में। और एक रिटर्न 0 मेरे से पूछा था किसी ने, तो मैं वो भी बताऊंगा। मुझे बस 2 मिनट दो, एक बार कोड खत्म करके इसको फिर हम समझाते हैं। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं चलो अभी के लिए इसको अलग अलग ही करते हैं, फिर बाद में कंबाइन करते हैं। scanf b, स्कैनफ का भी फंक्शन बता अभी दो। बता देता हूँ, गिव मी 1 सेकंड बस। c इक्वल टू a प्लस b printf %d, क्योंकि मैं इंटीजर्स के साथ ही खेल रहा हूँ इसलिए मैं %d रख रहा हूँ हर बार, और c प्रिंट करवा देंगे। या फिर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ sum is colon %d। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ एक बार। अगर मैं इसको रन करूंगा, यू कैन सी हियर, आ जा भाई ऊपर। अब ये यहाँ पे मेरे इनपुट वाला यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, ठीक है, यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है। तो अब वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार मैं इसको पहले a की वैल्यू दूं, फिर मैं इसको b की वैल्यू दूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 10 और 20 या चलो 2 और 3 प्रिंट करा, इनपुट कराते हैं। 2 दबाया, एंटर मारा, a को 2 मिल गया, 3 लिखा, एंटर मारा, तो उसको b को 3 मिल गया, और उसने मुझे सम इज 5 प्रिंट करा के
प्रोग्राम खत्म कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक चीज पूछी गई है कि आप मेरे को स्कैनफ समझा दो, एक जना कह रहा है मेरे को एम्परसेंड समझा दो, एक जना कह रहा है मुझे रिटर्न जीरो समझा दो। अब तीनों की इसकी टर्न आ गई है कि इसको ये बैकएंड पे कर क्या रहा है। अब देखो 1 सेकेंड एनोटेट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला था जो मेरा प्रिंटफ है वो मेरा प्रिंटिंग के लिए काम आता है, कि जो भी आप प्रिंट करवाना चाहते हो वो मेरा प्रिंटफ करवा देगा। सिमिलरली अगर मुझे यूजर्स इनपुट लेनी है, स्कैनफ काम आता है फॉर यूजर इनपुट। अब देखो मैं यहाँ पे अगर इन दोनों स्टेटमेंट्स की बजाय लिख देता a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, काम तो तब भी हो जाता, आंसर तो फिर भी 5 ही आता है ना, सेमीकोलन आएगा एंड में। तो अगर मैं ये दोनों करके a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3 करके तीसरी लाइन लिखता यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b, आंसर तो तब भी सम इज इक्वल टू 5 ही आना था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को फ्री कर लिया कि जब भी मैं रन करूंगा बार बार प्रोग्राम को, अगर मैं अब रन का बटन दोबारा ऊपर दबाऊंगा तो वो मेरे से दोबारा इनपुट लेगा। तो मैं 2 3 की बजाय 20 30 भी दे सकता हूँ, 10 20 भी दे सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा स्कैनफ है वो मेरा इनपुट के लिए काम आ रहा है, प्रिंटफ मेरा प्रिंटिंग के लिए आउटपुट के लिए काम आ रहा है। तो स्कैनफ इज माई इनपुट, प्रिंटफ इज माई आउटपुट। ठीक है जी। तो ये इनपुट आउटपुट वाली चीज कौन करवा रहा है हमारी, ये स्कैनफ प्रिंटफ कहाँ पे डिफाइंड है, इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो ये हेडर फाइल में मल्टीपल फंक्शन बने हुए हैं। एक इमेजिन करो कि एक ये फाइल है, ये प्रोग्राम सेव्ड है, इसका नाम है stdio.h, उसके अंदर मेरा printf वाला फंक्शन है, उसको हमने डिफाइन करा हुआ है, उसका कुछ स्टेटमेंट्स होंगे वो एज इट इज सेव होगा। सिमिलरली जो मेरा scanf है वो भी मेरा वहां पे पड़ा है और उसके अंदर भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे वो बैकएंड पे सेव है। तो वो बिकॉज मैंने हैश इंक्लूड कर लिया, इंक्लूड का मतलब है कि वो पीछे से इसको फेच करवाएगा और फिर हम इसको यहाँ पे अंदर यूज कर सकते हैं, scanf को भी और printf को भी। सर मतलब उसके पास फंक्शंस हमने इंपोर्ट कर दिए। हाँ बस इंपोर्ट करवाया, तो ये इंपोर्टिंग ही तो है, दिस इज इंपोर्टिंग। हाँ जी सर तो मतलब जैसे C++ में सी इन और सी आउट होता है, उसका काम स्कैन एफ और प्रिंट एफ कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वहां पे सी इन होता है और सी आउट होता है, तो वो मेरा सी आउट यहाँ पे प्रिंट एफ है और सी इन मेरा स्कैन एफ है। ओके सर। सर मतलब जब तक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट इंक्लूड नहीं करवाया, स्कैन एफ प्रिंट एफ सब मीनिंगलेस है। यस, मैं अभी आपको प्रूव कर देता हूँ ये चीज। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा एरर आएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये मेरा कमेंट हो गया, तो stdio.h को मैंने अभी यूज नहीं किया, सीधा मैंने लिख दिया int main। तो अब ये चीज क्या होगा कि आपको ना एक एरर देगा, और इसको रन करो तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा एरर आएगा। एरर ये आया है दैट इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन scanf, आपने इसको यूज कर लिया जी scanf को, और आपने printf को भी यूज कर लिया, ये तो इनकम्पैटिबल है, तो आप इसको इंक्लूड करो। ठीक है, उसने दे दिया कि यार ये कर लो, और प्रोवाइडेड डिक्लेरेशन ऑफ printf, या तो तुम अपना खुद का बना लो, खुद का नहीं बनाना तो कम से कम पीछे से मंगवा लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम हैश इंक्लूड stdio.h करेंगे और उसको एरर को भगा देंगे। 1 सेकेंड। तो अब मैंने यहाँ पे stdio.h ले लिया जी। अब वापस वो इनपुट मांग रहा है तो मैं इस बार इसको 10 दे देता हूँ और 20 दे देता हूँ और आउटपुट मेरा 30 आ गया। समझ में आ गया हो क्या रहा है? सर एक बार बस वो एम्परसेंड का एक बार यूज बता दो। एम्परसेंट रहता है अभी, आ गया भाई, एम्परसेंट पे भी आ गया मैं। उससे पहले ना मैं एक रिटर्न जीरो बताना चाहता हूँ। अब क्योंकि मैंने रिटर्न जीरो मैं क्यों पहले चूज कर रहा हूँ बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो एंड में क्या लिखा, प्रोग्राम फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। समझ आया? अब एग्जिट कोड 0 का मतलब है कि ये रिटर्न 0 यहाँ से करवाया है। और अगर मैंने यहाँ पे सपोज मेरा एरर आया होता, मैंने इसको कमेंट किया था तो एग्जिट कोड 0 नहीं था। इसको रन करते हैं, अब देखते हैं इसका एग्जिट कोड क्या है। क्या ये एग्जिट कोड दे भी रहा है? एग्जिट कोड दे ही नहीं रहा। ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ एरर दे रहा है बहुत बड़ा, इसमें ये एग्जिट कोड दे ही नहीं रहा। जनरली अगर आप अपना देव C++ में रन करोगे तो वहां पे एग्जिट कोड 1 आएगा, मैं आपको वो दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। बट यहाँ पे ना एग्जिट कोड 0 का मतलब ये है सक्सेसफुल कंप्लीशन। एक सेकेंड, मैंने इसको रन किया, फिर से नंबर दे दिए 1 2, सम आ गया 3 और एग्जिट कोड 0। अब यहाँ पे एग्जिट कोड 0 का मतलब है रिटर्न 0 जो मेरा कर रहा है। तो वो रिटर्न 0 का मतलब क्या है उस पर आ गया मैं। एम्परसेंट पे भी एक सेकंड में आने वाला हूँ, पहले रिटर्न 0 का थोड़ी सी कहानी बता दूं, इसकी स्टोरी क्या है। रिटर्न 0 की कहानी ये है जी, जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो ना तो आप किसी ना किसी ओएस पे यूज कर रहे हो उसको, कोड को। ठीक है, जो ये आपका ओएस है इसके ऊपर आपने वो देव C++ इंस्टॉल किया,
ठीक है, या फिर जो ये वेबसाइट है ये भी कोई ना कोई बैकएंड पे कंपाइलर यूज कर रही है, तो ये हमें कंपाइलर देता है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो हमें कंपाइलर देता है। तो अब कंपाइलर रन किस पे होता है, ओएस पे। ठीक है, अब अगर आप टास्क मैनेजर में जाओगे, यू विल सी दैट देव सी प्लस प्लस इज टेकिंग आई थिंक मे बी 200 MB। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि इसको रैम मिली है जी 200 MB, और इस 200 MB में इसने काम करना है सारा जो भी करना है। लेकिन व्हेन वी आर रिटर्निंग 0 इन द एंड ऑफ आवर कोड, आई एम गिविंग माई सिग्नल टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसने मेरे को वो जगह दी थी 200 MB या 500 MB, मेरे को जगह मिली थी मेरे उस लैपटॉप में जहां पे मेरा हो सकता है दैट आई हैव ओनली 8 GB ऑफ रैम। तो मुझे 8 GB में से 500 MB रैम मिला था टू रन माई प्रोग्राम, टू 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 गेट द वर्क डन थ्रू दिस देव C++ और वट एवर द कंपाइलर इज। तो मैं अपने इस कोड के थ्रू एक सिग्नल भेज रहा हूँ, एक सॉफ्ट सिग्नल है ओएस को, कि मेरा जो मेजर काम था जो मैं करना चाहता था वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। प्रोग्राम फिनिश विद एग्जिट कोड 0 का मतलब यही है कि मैं अपने ओएस को सिग्नल दे रहा हूँ कि मेरा काम हो गया, तो अपनी 500 MB वापस ले ले, कहीं और लगा ले अगर तेरे को कोई और काम है तो। समझ आ गया जी? बेसिकली काइंड ऑफ फॉर्मल वे है किसी भी कोड को एंड करने का, कि यस अपना कोड कंप्लीट हो चुका है। यस यस यस, इट्स ए सिग्नल के मेरा काम हो गया, यू कैन टेक योर रिसोर्सेज बैक। एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट यू विल लर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इन थर्ड सेमेस्टर और मे बी फोर्थ सेमेस्टर। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक सब्जेक्ट आएगा, वहां पे ये बहुत डिटेल में आपको समझाया जाएगा दैट हाउ डज दिस थिंग वर्क, कि आपका प्रोग्राम बैक एंड पे कैसे मेमोरी ले रहा है, आपको रैम कैसे मिल रही है, वो सब बहुत डिटेल में एंड में आएगा, मतलब अलग सब्जेक्ट में आएगा। बट फ्रॉम द सी प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट विल बी कवर्ड, जो जितना भी आपको सिलेबस में होगा तो हम उसका भी डिटेल में लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे फॉर यू। अनिल सर विल कंप्लीट, अनिल वशिष्ठ सर है ना? Yes, sir. यस, sir. तो ही विल Excuse me, sir. कंप्लीट दिस। हाँ जी बताओ। सर जो रिटर्न 0 नहीं लिखा तो मतलब वो रैम वहीं रहेगी? नहीं मतलब उसको पता तो चल ही रैम जाएगा। वापस मिल ही जाएगी? देखो पता तो उसको चल ही जाएगा कि वो रिसोर्स यूज कर रहा है या नहीं कर रहा। अब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और कंसेप्ट होता है कि मेरी मशीन आइडल बैठी है या मतलब काम कर रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को तो पता चल ही जाएगा कि उसने रैम यूज करी है कि नहीं, उसका काम चल रहा है या नहीं। तो रिटर्न 0 अगर मैं यहाँ पे रन मतलब नहीं भी यूज करूंगा तब भी वो देखते हैं क्या करता है। 2 और 3 मैंने दिया, जैसे 23 हो गया ये और 2, तो आंसर आ गया 25। इसने तब भी एग्जिट कोड 0 दे दिया। ठीक है, अगर आप रिटर्न नहीं 0 लिखोगे तो भी आपका काम तो हो ही रहा है, उसको सिग्नल तो जा ही रहा है। आपका कंपाइलर इतना इतना इंटेलिजेंट है कि वो बिना आपके बताए 0 भेज देगा। I think this depends on the compiler. Like यस यस, Turbo C++ is not like that much. टर्बो यस देखो टर्बो जो सी है ना, टर्बो सी वाज बीइंग यूज्ड इन द इंडस्ट्री इन 1999, जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, इतना पुराना है वो। उसमें क्या था कि वो सब कुछ बताना पड़ता था उसको, तो ओवर टाइम कंपाइलर भी स्मार्ट हो गए। ठीक है जी। Yes, yes. The तो codes like getch and हाँ, तो वो गेट सी एच Omnia.ll. वाला भी था हाँ जी, उसमें, हाँ जी। गेट सी एच होता था, आई नो। तो वहां पे क्या तो होता था हर कि चीज बतानी पड़ती थी। हाँ, तो वहां पे तो ये होता था कि जो आपका ये आउटपुट है ना सम इज 25, यहाँ पे तो बड़ी शराफत से बैठे नीचे, वहां पे तो वो 0.1 सेकंड के लिए आता था और गायब हो जाता था। तो गेट सी एच लगा के उसको रोकना पड़ता था। रिटर्न 0 की बजाय यहाँ पे हम उसको गेट सी एच रखते थे कि हाँ, भाई उसके लिए तू रुक जा, थम जा, तेरे को मैं एक करेक्टर दूंगा तभी तो उसको स्क्रीन को बंद करियो, जब तक मैं तेरे को गेट करेक्टर नहीं देता एक भी, तब तक तो इसको पकड़ के रख आउटपुट को वहां स्क्रीन फिर पे। उसके लिए वो हेडर फाइल्स भी देनी पड़ती है, हाँ conio.h यस टाइप यस को। यस यस, कोनियो डॉट एच होता था, आई रिमेम्बर। वो सब तो यार मैंने 2008 में किया था व्हेन माय बीटेक स्टार्टेड। तो वो सब आप भूल जाओ, उसका उसका जरूरत नहीं है आपको। जस्ट यूज दिस कंपाइलर ऑनलाइन जीडीबी, या फिर आप अपना देव C++ यूज करोगे सॉफ्टवेयर, तो उसमें आपका इजीली ये काम हो जाएगा। नाउ कमिंग टू दिस एम्परसेंट, इसका काफी देर से सस्पेंस चल रहा है कि ये एम्परसेंट क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि बहुत जनों को कंफ्यूजन ये होगी कि यार यहाँ पे तो नहीं लगाया, यहाँ पे लगाया है, ऐसा क्यों, फर्क क्या है? सर फर्क एम्परसेंड बेसिकली ए को डिफाइन कर रहा है कि वो एक इंटीजर है, शायद इसलिए नहीं तो स्पेसिफाई। नहीं नहीं देखो जो हमने डिक्लेयर करा है यहाँ पे बता दिया इंट ए बी सी, हमने तो बता दिया यहाँ पे कि ये तीनों इंट हैं, तो अलग से क्यों डिफाइन करेंगे हम कि ये इंटीजर है? ठीक है, जब हमने यहाँ पे फर्स्ट लाइन में बता दिया, लाइन नंबर 14 में हमने बता दिया कि मेरा ए बी सी तीनों इंटीजर हैं, तो यहाँ पे एम्परसेंट का मतलब कुछ और है, मैं अभी बता रहा हूँ इसका। देखो एम्परसेंट का मतलब ये है, अब क्या है कि जो मेरा ए है, इंटीजर ए है, अब बैक एंड पे कुछ रैम बैठी है, ठीक है, रैम है, उस रैम में ए को भी जगह मिली, बी को भी जगह मिली, सी को भी जगह मिली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, ठीक है, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ,
पर्सनली माई लैपटॉप है 16 GB, पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 8 GB है या फिर सपोज 2 GB है, तो 2 GB का एक वहां पे टेबल होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम, अब 2 GB को कैसे बांटे? अच्छा, कैन यू टेल मी 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 8 बिट्स, ठीक है जी। अब मैं फटाफट से इसको कवर कर लेता हूँ। 8 बिट्स से बनता है 1 बाइट, ठीक है। किलोबाइट कैसे बनता है? 1 KB 1024 बाइट्स, ठीक है जी। पर अब तो 1000 ही यूज कर लेते हैं ना। टेक्निकली तो 1024 है ना, तो मैं 1024 ही हाँ, रखूंगा। yes, तो इसको जनरली लोग क्या करते हैं, 2/10 लिख देते हैं। तो 1024 KB से क्या बनता है? 1 GB। अच्छा, MB बनता है पहले, हाँ MB। और 1024 MB से क्या बनता है? GB। 1 GB अब GB और GB से 1024 GB 1 से टेराबाइट टेराबाइट, और 1024 टेराबाइट से क्या बनता है? मेगाबाइट मेगाबाइट तो ऊपर था, पेटाबाइट Byte, होता है जी, पेटाबाइट। पीबी होता है पेटाबाइट, ठीक है। ऐसे ही पीबी के बाद फिर और भी होते हैं, एक ZB योटाबाइट भी होता था ना। ZXY ऐसे अलग अलग होते हैं। तो मैं पीबी तक ही जाऊंगा अभी, क्योंकि हमें इतना वैसे चाहिए भी नहीं। अब देखो क्या है, अब यहाँ पे सपोज मेरे पास 2 GB रैम है, ठीक है। 2 GB रैम है, तो उसकी कुछ ऐसे करके उसका स्टैक बना हुआ है रैम का, ठीक है। अब 2 GB है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग, अच्छा उसमें ना एक और कंसेप्ट होता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अभी के लिए हम ये लेके चलते हैं कि मेरा एक बार में यहाँ पे 1 बाइट ही सेव हो रहा है। वैसे तो डिपेंड करता है कि आपका वर्ड साइज क्या है। वर्ड साइज इज ए टर्म अगेन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। जनरली यहाँ पे एक बार में वो 4 बाइट्स रख लेता होता है, पर मैं यहाँ पे 1 बाइट ही लेके चलूंगा। तो अगर मैंने 2000 तक जाना है, तो 000 से लेके 2047 तक, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा 2 GB है? अगर मैं इसको 1 MB कहता हूँ, चलो एक बार में मैं 1 MB रख रहा हूँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये 2048 MB इज इक्वल टू 2 GB? यस और नो? तो जो मेरा ये ए है ना, उसको कोई ना कोई यहाँ पे रैंडम जगह मिलेगी। तो जो ये नंबरिंग चल रही है 0 से लेके 2047 तक, हो सकता है कि इसको 501वीं लोकेशन एलोकेट हो जाए, तो ए मेरा यहाँ पे सेव होगा। ऐसे ही जो मेरा बी है, इसको कोई रैंडमली जगह मिल जाएगी, लेट्स से इसको मिल गया 1500 नंबर, तो वो 1500 में बी सेव होगा। तो वो जो रैंडमली कहीं पे उसको जगह एलोकेट हो रही है, वो जगह एलोकेट करवाने के लिए दैट स्पेस वी वांट टू गेट, वी नीड टू गिव ए एम्परसेंट। जो ये एम्परसेंट है, ये मेरे को उस रैम में जगह दिलवा रहा है एक रैंडम जगह पे, मतलब ठीक है, वो सेव होने के लिए एक रैंडम स्पेस उसको एलोकेट हो रही है। दैट्स व्हाई वी वांट दिस एम्परसेंट, कि भाई तू एक जगह ले, वहां पे जाके अपना नंबर सेव करवा ले, जो भी मैं तेरे को दूंगा। अब स्कैनफ में क्या हो रहा है? इनपुट हो रही है जी, ठीक है, इनपुट हो रही है। तो जो भी इनपुट है, विच एवर इनपुट वी हैव, दैट वी आर गिविंग एज ए यूजर, बट दैट इज बीइंग स्टोर्ड एट दिस लोकेशन नंबर 501, ठीक है, जो मैंने एक एग्जांपल दिया है। ऑब्वियसली मैंने बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, मैं आपको जस्ट फॉर पता हो कि चलो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे सपोज 4 बाइट्स है, तो 4 बाइट्स ना, 4 बाइट्स की उसको लोकेशन मिलेगी। लेट्स से इनिशियल उसका स्टार्टिंग लोकेशन वाज 100, तो वो 100 से लेके 103 तक 100, 101, 102, 103, वो 4 लोकेशंस को यूज करके मेरे ए को सेव करेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया नहीं था, इंटीजर का जो साइज होता है इट इज बाय डिफॉल्ट 4 बाइट्स, ठीक है। मतलब मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। जो मेरा कैरेक्टर होता है वो मेरा 1 बाइट का होता है, ठीक है। जो मेरा इंटीजर होता है वो मेरा 4 बाइट्स का होता है। मेरा फ्लोट होता है, जो फ्लोट इज ऑल्सो 4 बाइट्स। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटीजर में इंटीजर आते हैं 1 2 3 4, इसमें 0.2 का भी हिसाब रखा जाता है, 1.234 या 1.235, इसको भी वो फिर 4 बाइट्स में ही अपने हिसाब से कन्वर्ट करके, ये कन्वर्जन आपको आएगी, सिलेबस में है, आपको लेक्चर में सिखाया जाएगा कि कैसे आप उसको कन्वर्ट करते हो। समझ में आ गई एम्परसेंट क्या कर रहा है? एम्परसेंट हमें सिर्फ रैम में जगह दिला रहा है, और उस जगह पे वो नंबर हर बार रिप्लेस हो जाएगा। अगर मैं एम्परसेंट ए को 10 बार इनपुट करवाऊं, तो वो 10 के 10 बार सेम लोकेशन पे चेंज करेगा। वो 10 को काट के 20 कर देगा, 20 को काट के 30 कर देगा, तो वो लोकेशन पे एक ही जगह पे अपडेट मार रहा है बार बार जाके। और ऐसे ही जो मेरा इंट सी है, जब मैंने उसको, अब देखो इसमें ना एक और कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट मैंने एक पीछे यूज किया था, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन।
declaration and definition. ये आपको वैसे लेक्चर्स में करवाया जाएगा. आई एम गिविंग यू ओवरव्यू. आई एम अगेन सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, एंड दिस रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आप इसको दोबारा से देख के कुछ चीजें रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो. सो डिक्लेरेशन का मतलब है कि मैंने सिर्फ इंट एबीसी लिखा है, तो ये सिर्फ डिक्लेयर करा है कि मैं ऐसा कुछ यूज करूंगा आगे जाके. अभी इसको मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, अभी रैम में इसको कोई जगह नहीं मिली. बट व्हेन आई सेड scanf एंड %a, इस स्टेटमेंट के बाद इसको यहाँ पे 501 नंबर लोकेशन पे ये इसका A एलोकेट किया गया था कि ये मेरा A है 501 नंबर. ऐसे ही जब मैंने scanf B करा तब B को यहाँ पे 1500 नंबर एलोकेट हुआ, 1500 नंबर लोकेशन. तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी 10 है 20 है वो यहाँ पे बाद में आती रहेगी. बट देन उसको जब लोकेशन एलोकेट हो रही है विद इन द रैम, इसको बोलते हैं हम डिफाइन करना. दिस इज डेफिनेशन. जब उसको जगह मिल गई रैम में तब इसको हम कहते हैं कि हमने डिफाइन कर दिया. तो उसको डिफाइन कर दिया कि भाई उसको ये वाली जगह मिली है, उसकी इतनी वैल्यू है. ठीक है. बट जब तक मैंने ये रन स्टेटमेंट नहीं करा, c इक्वल टू a प्लस b मैंने रन नहीं किया था अब तक, तब तक मेरा c सिर्फ इस पॉइंट तक, scanf के बाद यहाँ तक, इस पॉइंट तक c वाज ओनली डिक्लेयर्ड, सिर्फ डिक्लेरेशन हो रखी थी. उसको डिफाइन अब करा जब मैंने c इक्वल टू a प्लस b करा. एट दिस मोमेंट c मेरा डिफाइन हुआ. c इज डिफाइंड एट दिस प्लेस. समझ में आया? डिफाइन और डिक्लेयर में फर्क क्या है? डिक्लेयर का मतलब है कि मैं यूज करूंगा, अभी सिर्फ इंटेंशन बता रहे हैं अपना कि मैं आगे जाके इन तीनों को यूज करूंगा. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे c इक्वल टू a प्लस b लिखता ही ना. ठीक है. यहाँ पे सीधा कर देता कि यार मैं इस c को रिप्लेस करके सीधा यहाँ पे a प्लस b लिखता हूँ. काम ऐसे ही करवा लेता हूँ मैं, a प्लस b करवा के इसको यहाँ पे सम को भेज दूंगा इस %d में. सम इस जो भी सम होगा 2 + 3 वो तो आ ही जाएगा. तो c इक्वल टू a प्लस b अगर नहीं करवाया तो c मेरा अनयूज्ड रह जाएगा. c को तो डेफिनेशन मिला ही नहीं. ठीक है. अगर मैं इसको कमेंट कर दूं तो मैं यहाँ पे इस c की जगह पे सीधा a प्लस b लिख दूं, काम तो तब भी हो ही जाएगा. तो इट डिपेंड्स कि आपने वेरिएबल कितने यूज करने हैं. ठीक है. तो मतलब मैं बहुत सारी चीजें इकट्ठी बता रहा हूँ. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर आपको लग रहा है कि हैवी हो रहा है, यू कैन स्टॉप मी, यू कैन आस्क मी. अब यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी राइट नाउ. सर ये printf में एम्परसेंड नहीं आएगा, राइट? एम्परसेंट नहीं आएगा. यस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा. अगर यहाँ पे एम्परसेंट डाल दोगे तो इसका मतलब तो है कि मुझे लोकेशन चाहिए. इसका मतलब है कि मुझे एक रैम में लोकेशन दो. ठीक है. अभी एक रैम थी उसमें एक लोकेशन दो, पर एम्परसेंट नहीं डालेंगे क्योंकि इसको लोकेशन मिल चुका पिछली स्टेटमेंट में. उसको लोकेशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको दोबारा से क्यों हम एक जगह एलोकेट करें. तो सर ये इनपुट के लिए यूज करते हैं, इनपुट को जगह देने के लिए. यस सिर्फ इनपुट के टाइम पे हम उसको एम्परसेंट लगाते हैं. प्रिंटफ में हम एम्परसेंट नहीं लगाते. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इन दोनों को ध्यान से देख लो. यस सर. एनी अदर सर डाउट? हाँ जी. सर जैसे हमने प्रिंट के %d के पहले कुछ लिखा है, अगर हम scanf के पहले लिखेंगे तो वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा? दिखा देगा. लेट्स दिखा सी देगा. लेट्स सी लेट्स सी. अब यहाँ पे सपोज मैं अब देखो यहाँ पे तो हम जब नीचे इनपुट दे रहे थे तो वो हमने सीधा 2 दिया था, वो खाली जगह लेके बैठा था. लेकिन अगर मैं यहाँ पे %d लगाता हूँ सीधा, देखते हैं देता है कि हमें उससे पहले printf लगाना चाहिए. मैंने बड़े साल पहले ये किया तो था. लेट्स से मुझे यहाँ पे a का इनपुट करवाना है तो मैं a इक्वल टू ये कर देता हूँ और b इक्वल टू ये कर देता हूँ. अब इसको मैं रन करता हूँ. ठीक है. गिव value of a, give me value of b. अब देखते हैं ये एरर देता है या करवा देता है. इसने कुछ भी नहीं किया, प्रिंट नहीं करा, तो इसलिए इसको मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये कंपाइलर बेस्ड है. नहीं ये एरर ही आया है, ये एरर ही है. इसने कुछ भी नहीं किया बल्कि ये एरर दे दिया. तो आप एक काम करो, अगर आपने ऐसा कुछ करना है देन सिंपली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन printf लगा दो. इससे जस्ट पहले यहाँ पे printf लगा दो और printf में लिख दो give. अलग अलग इन्वर्टेड कॉमास में नहीं कर सकते कि पहले इन्वर्टेड कॉमा में गिव मी द वैल्यू ऑफ ए, फिर कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये scanf के अंदर %d. scanf के अंदर. हाँ सर. तो scanf के अंदर ही किया मैंने. scanf के अंदर ना मल्टीपल नहीं कर सकते. मतलब scanf हो या printf हो, हम मल्टीपल कॉमास तो लगा ही नहीं सकते. एक ही पेयर आएगा डबल कोट्स का. ओके. ठीक है. तो अब यहाँ पे सपोज इनपुट हो गया, इसके बाद मैं
अगली स्टेटमेंट से पहले बैकस्लैश एन लगाया था, मैं बैकस्लैश एन बताता हूँ क्या होता है। न्यू लाइन होता है वैसे तो, मैं इसको प्रैक्टिकली एंटर। दिखाता हूँ। इसको भी न्यू लाइन कर देते हैं। अब देखो, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब ये मेरे को कह रहा है गिव मी वैल्यू ऑफ ए। वो क्या पीछे रन करा उसने, जो प्रिंट एफ लाइन नंबर 15 में हमने लिखा था वो एज इट इज उसने वैसे प्रिंट करवा दिया कि गिव मी वैल्यू ऑफ ए। अब ये यहाँ पे वेट कर रहा है, जो 16 नंबर लाइन थी स्कैन एफ, इट इज वेटिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए, आई गिव इट 3। तो अब इसने मुझे उसके बाद न्यू लाइन दोबारा किया इसने, ठीक है, ये न्यू लाइन किया लाइन नंबर 17 में, मैंने गिव से पहले बैकस्लैश एन लिखा है तो उसने न्यू लाइन लिया, बीच में एक स्पेस डाल दिया 2 लाइनों में। अब वैल्यू ऑफ बी लेट इट बी 2, ठीक है, इसने सम इज 5 प्रिंट करा दिया। और यहाँ पे मैंने इसका परसेंट डी नहीं, इसके यहाँ पे परसेंट 10 लगाया था, ठीक है। तो परसेंट 10 का मतलब है इसने यहाँ पे भी हमें एक नीचे स्पेस दे दिया है गिव मी वैल्यू के बाद सम इससे पहले। तो ये सब हमारा चल रहा है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऐड योर थिंग्स। अब यहाँ पे ना मुझे एक लेक्चर में भी एक बच्चे ने पूछा था, ही आस्क्ड मी दैट इफ ही वांट्स टू प्रिंट द डबल कोट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो मैं इसको ना अब डिलीट कर रहा हूँ, बहुत होगी इसके ऊपर डिस्कशन। लेट्स से दैट आई वांट टू प्रिंट द डबल कोट्स। तो मैं अगर डबल कोट्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ प्रिंट एफ डबल कोट्स, उसके अंदर फिर से डबल कोट्स। तो ऐसे करके डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अगर मैं कर दूं तो क्या ये मेरा ये वाले डबल कोट्स को प्रिंट कर देगा एज इट इज? नहीं करेगा, एरर आएगा, यस सर। है ना। एरर क्या आया? एरर आया कि भाई तुमने ऐसा कुछ जीरो लेंथ GNU printf, ये काफी कॉम्प्लेक्स सा आ गया, पर मेरे को ये पता लग गया कि मैं सीधा ऐसे नहीं लिख सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, एनी आइडिया? अंडरस्कोर टाइप कुछ बैकस्लैश आएगा। अगर मैं यहाँ पे बैकस्लैश लगा दूंगा दोनों के साथ तो मेरा वो एज इट इज यहाँ पे डबल कोट्स को प्रिंट कर देगा। बैकस्लैश क्यों लगा रहे हैं? बैकस्लैश इज माय स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशली जब आपने वो देखा था, लेट्स से बैकस्लैश एन मैंने डाला था, ठीक है, बैकस्लैश एन डाला था मैंने पिछले प्रोग्राम में, तो बैकस्लैश एन क्या कर रहा था, न्यू लाइन दे रहा था। अब इसको देखोगे तो 2 बार ये देगा अलग अलग लाइंस में। उसने क्या किया, पहले कोट्स को प्रिंट किया, फिर वो न्यू लाइन में गया, अगली लाइन में फिर से उसको प्रिंट किया। तो जब भी हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि मुझे बैकस्लैश एन देना है, बैकस्लैश बी करना है, बैकस्लैश एन इज न्यू लाइन, बैकस्लैश बी इज बैकस्पेस, ऐसे ही बैकस्लैश कोई और होगा तो उसका मतलब अलग अलग होता है यहाँ पे। तो अभी के लिए हम इसको बैकस्लैश लगा के इन दोनों को प्रिंट करवा सकते हैं। इज सी स्पेस सेंसिटिव? Space before the comma matters. So which comma are you talking about? This one, the semicolon? I Yes, received. sir. Okay. So अगर मैं यहाँ पे नहीं करता, चलो यहाँ पे स्पेस डाल दी, लेट्स सी कि मेरा एरर आ रहा है या नहीं। तो इसमें कोई एरर नहीं आ रहा, बट आई वांट टू मेंशन वन थिंग, यहाँ पे ये केस सेंसिटिव जरूर है। केस सेंसिटिव मतलब अगर मैं स्मॉल m को कैपिटल M कर दूंगा या मैं प्रिंट एफ को कैपिटल P कर दूंगा, ठीक है, तो इस केस में ये एरर देगा, इस केस में ये एरर जरूर देगा। एरर दे रहा है ये देखो, इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दिस डिड यू मीन प्रिंटफ। ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट कंपाइलर है, खुद ही कह रहा है कि ठीक कर लो यार, छोटा p लगा लो, ठीक है। एंड सिमिलरली इसमें कोई और एरर आया, वो मेन, लास्ट में मेन आया ना, मेन का भी तो हाँ ये रहा, यस। तो मेन का भी उसने दे दिया कि कैपिटल M है, ठीक है, इसको ठीक करो आप। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि छोटे बड़े का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। एंड ऑल्सो एक और चीज ध्यान देनी है, यहाँ पे प्रिंट एफ में से अगर f उड़ गया तो भी ये गलत है, f लगाना पड़ेगा। प्रिंट नाम का कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है, प्रिंट एफ नाम का ही है। तो यहाँ पे अच्छा, एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज दिस इंट हेयर? तुम्हें पता है कि अब इंट एबीसी क्या होता है, तो इंट मेन क्यों लगाया हमने? सर अब मेन फंक्शन में इंटीजर्स के साथ डील कर रहे हैं इसलिए। यस सर। क्यों नहीं, अच्छा एक सेकंड मेरे को, variable। अगर मैं यहाँ उसमें जो पे, भी हम आउटपुट रिटर्न करेंगे वो इंटीजर फॉर्म में चाहिए हम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे फ्लोट a कर दूं, ठीक है, और a इक्वल टू 3.142 कर दूं, इनफैक्ट इसको मैं पाई कर देता हूँ क्योंकि हमें वो सर्कल वाले में भी पाई चाहिए। तो अगर मैंने ये कर दिया और यहाँ पे मैं कर दूं %f, तो क्या ये मेरा प्रिंट नहीं करवाएगा ये? सब वो सिर्फ 3 प्रिंट कराएगा। देखते हैं। अच्छा सेमीकोलन इज मिसिंग। सेमीकोलंस नहीं होता। तो इसमें हर लाइन के बाद सेमीकोलन डालना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन था जो सिर्फ 3 प्रिंट कराएगा? तो मुझे लगा कराना चाहिए क्योंकि सिर्फ देखो अब देखो,
हाँ, तो ये यही तो कंफ्यूजन दूर करनी है। देखो जो इंट मेन है ना, इंट मेन एक फंक्शन है, और फंक्शन ना हमेशा एक वैल्यू रिटर्न करता है। किसको करता है? जो उसको कॉल करेगा। अब यहाँ पे हमने अलग से फंक्शन बना के तो उसको कहीं पे कॉल किया नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ पे इंट सम नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें मैंने दे दिया कि इंट ए और इंट बी आएंगे जी, उनको तुम वैल्यू यूज कर लेना। अब ये थोड़ा सा एडवांस हो रहा है, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू वन आइडिया, अगर किसी को समझ में आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न a प्लस बी कर दूं, तो मेरे को a प्लस बी का सम रिटर्न होके आ जाएगा। और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करवा दूं। अब ये थोड़ा सा एडवांस है, सिर्फ उनके लिए जो थोड़ा सा और डिटेल में समझना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इंट c और d कर दूंगा, और यहाँ पे मैं कर दूं कि जी मेरे को प्रिंट करवाना है, क्या कराना है, printf %d, मेरे को सम चाहिए। थोड़ा सा ये एडवांस हो गया कोड, लेकिन एक बेसिक आइडिया देने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसको \n कर देता हूँ। अब देखो इसमें दो तीन चीजें हो रही हैं। एक तो मैंने ये बना दिया इंट सम, एक अलग फंक्शन बना दिया, जैसे इंट मेन एक फंक्शन था वैसे इंट सम एक फंक्शन है। और इसका जो इंट है वो इंट मेरे इस सम फंक्शन का, क्योंकि देखो मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन है उसके साथ राउंड ब्रैकेट आते हैं, तो राउंड ब्रैकेट के अंदर हम ए बी को भी भेज दिया हमने कि चल यार ले ले तू ए बी और काम करके दे मेरे को, और रिटर्न करवा दे सम को a प्लस बी, ठीक है। तो उसने वैल्यूज को रिटर्न करवाएगा, वो a प्लस बी करके दे देगा। और वो यहाँ पे जब कॉल होगी, अब देखो there is one basic rule in C programming. Irrespective of this sum function, or maybe there might be hundreds of functions, जो मेरा कंपाइलर है ना वो सबसे पहले मेन को ढूंढेगा और मेन को पकड़ेगा कि चल आजा मेन, तू मेरा काम शुरू करवा। तो whenever this program will run, it will start from main। तो मेन के अंदर वो आएगा, वो आके देखेगा अच्छा पाई है, cd है, cd में हमने cd के तो चलो वैसे हमने यूज ही नहीं करा, हमने तो सीधे उसको 2 और 3 दे दिया था। तो मैंने 2 और 3 की वैल्यू दी सम की, और एज इट इज यहाँ पे पास कर दी। तो a को 2 मिल जाएगा, b को 3 मिल जाएगा, सम होके रिटर्न होके 5 आ जाएगा, वो प्रिंट यहाँ पे करवा देगा। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो यहाँ पे इसने करा है। अब देखो आउटपुट में 5 आया है, वो 5 कहाँ से आया है? सबसे पहला प्रिंटफ लाइन देखो, प्रिंटफ में करा है मैंने %d और एक फंक्शन कॉल करवा ली। अब ये फंक्शन कॉल मुझे यहाँ से रिटर्न करवा के वैल्यू दे रहा है, और जो हम वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं ना, वो रिटर्न का रिटर्न टाइप इज इंटीजर। इन केस ऑफ सम, जो रिटर्न स्टेटमेंट होता है उसका क्या रिटर्न टाइप है? वो इंटीजर है इस केस में। तो ऐसे ही जो मेरा मेन था, उसका मेन का मतलब ये नहीं था कि मेन के अंदर मैं इंटीजर के अलावा कोई और काम करवा नहीं सकता। उसका मतलब ये था कि जो मेरा रिटर्न है वो रिटर्न 0 है, वो जो 0 है वो मेरा एक इंटीजर है जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजा था, ठीक है। तो इंट मेन का मतलब ये है दैट आई एम रिटर्निंग दिस 0 एट द एंड ऑफ माय प्रोग्राम, and that 0 is signifying a successful completion to the operating system, but it does not mean कि मैं यहाँ पे इंटीजर के अलावा फ्लोट या कैरेक्टर या स्ट्रिंग नहीं यूज कर सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ठीक है जी। अब ये समझ आ गया डिफरेंस? ये इंट मेन का मतलब क्या है? इंट मेन का मतलब है दैट वी आर रिटर्निंग ए इंटीजर, दैट्स ऑल। इसके अलावा दूसरा कोई और मतलब नहीं है। सर हाँ जी सर, तो जैसे अगर हम फंक्शन डिफाइन करेंगे और हम मेन में तो हर बार इंट ही रखेंगे, कोई जीरो भेजना एग्जिट कोड करना। नहीं, तो अब यहाँ पे अगर आप वॉइड कर दोगे काम तो तब भी हो जाएगा। वॉइड का मतलब होता है, वॉइड का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं है। हाँ, वॉइड का मतलब है कि वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, हम अपनी तरफ से उसको कुछ फंक्शन को रिटर्न नहीं करवा रहे। तो अगर मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 लिख दिया और ऊपर वॉइड करा, फिर एरर आना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आएगा सर, आ रहा है, यस। तो देखो वो कह रहा है कि यार तुमने तो मेरे को बोला था कि कुछ भी रिटर्न नहीं करना। वॉइड का मतलब होता है कुछ भी नहीं देना हमें रिटर्न में, पर तुम तो रिटर्न 0 करवा रहे हो, इसका मतलब पंगा पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कमेंट कर देंगे इन केस वी आर यूजिंग वॉइड मेन। तो अगर मैं इंट रखूंगा तो इंट से, ठीक है, इंट इज ए स्टैंडर्ड थिंग। तो इसमें ये समझ में आ गया कि मैं इंटीजर भी यूज कर सकता हूँ, फ्लोट भी यूज कर सकता हूँ, सम भी करवा सकता हूँ। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है आज ऑलरेडी। नाउ हाँ जी सर, वो रिटर्न 0 की जगह रिटर्न 1 या 2 कर देंगे तो क्या आएगा? देखो क्या होता है कि नॉन जीरो वैल्यू, इसको नॉन जीरो बोलते हैं कि जीरो के अलावा कोई भी और नंबर हो, 1 है, 2 है, 2000 है, 10,000 है, 100 है, कुछ भी है। तो रिटर्न 1 का मतलब जनरली इट मींस दैट नॉन जीरो वैल्यू इज नॉट ए सक्सेसफुल थिंग। तो यहाँ पे ये शो तो नहीं कर रहा, पर कुछ कंपाइलर इसको पकड़ लेंगे, वो बोलेंगे यार 1 का मतलब तो नॉन जीरो है, नॉन जीरो का मतलब तो होता है कि सक्सेसफुल नहीं है तुम्हारा काम। तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इज रिटर्न 0। 0 का मतलब है स्टैंडर्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन।
ठीक है, 0 के अलावा कोई भी और नंबर लिख लो यहाँ पे, -1, 1, 2, 3, 4, 100,000, 10,000, तो वो अनसक्सेसफुल माना जाता है। जनरली 0 ही सक्सेसफुल होता है बस इस केस में। ठीक है, हाँ जी, तो हाँ जी। सर एक पिछले कॉन्सेप्ट में डाउट था, वो आपने पहले बताया था कि प्रिंट एफ जो प्रिंट एफ करके हमने जब हेलो वर्ल्ड किया था तब उसके अंदर हमने क्या परसेंट टेस्ट नहीं यूज किया था, वो एक बार फिर से बता दो। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो चीज। देखो 2 तरीके हैं, एक तो है कि मैं प्रिंट एफ करूँ सीधा और मैं सीधा लिख दूँ हेलो वर्ल्ड, न्यू लाइन में कर देते हैं हेलो, चलो पहले क्या बाद में यूज कर लेंगे ये, हेलो वर्ल्ड हो गया /n ताकि अगले वाला न्यू लाइन में जाए, फिर एक स्ट्रिंग s एक क्लास होती फॉरवर्ड है, स्लैश आएगा ना और बैकस्लैश, आई एम कंफ्यूज। बैकस्लैश होता है। बैकस्लैश का मतलब है स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हमने वो बैकस्लैश डबल कोट्स वाले यूज करे थे, तो जब भी स्पेशल कैरेक्टर होगा तो बैकस्लैश ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करा माय नेम इज डॉक्टर साहिल। ठीक है, तो अब अगर मेरे को ये वाला स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, आई होप इसमें एरर ना हो, ऊपर हैश इंक्लूड में स्ट्रिंग डॉट एच कर लेंगे अगर कुछ एरर आया। ओके, इसको मैं कैपिटल एस कर लेता हूँ। तो देखते हैं क्या ये दोनों चीजें प्रिंट करवा रहा है कि एरर दे रहा है। इसको मैं अगर रन करूंगा, एरर दे रहा है, ये कह रहा है अननोन नेम स्ट्रिंग। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग वाला छोटा होता है क्या? नहीं, छोटा भी नहीं होता तो ये। str होता है क्या, str? नहीं नहीं नहीं, गिव मी 1 सेकंड, हैश इंक्लूड, मेरे को ये करे हुए 4-5 साल हो गए हैं, लेट्स ट्राई, मुझे लग रहा है कि ये होता है। एरर देना पड़ता है आई थिंक, और स्ट्रिंग डॉट एच है, स्ट्रिंग एस है, अब देखें कुछ हो रहा है क्या। छोटा है क्या? 1 सेकेंड, मेरे को बहुत साल हो गए हैं करे हुए, कोई ना, आई विल कम टू दिस स्ट्रिंग वाला। ठीक है, स्ट्रिंग डॉट एच हम अगली क्लास में कर लेंगे कवर, अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को भी काफी साल हो गए हैं सी प्रोग्रामिंग करे हुए। आई विल लेट यू नो दिस थिंग लेटर ऑन। ठीक है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना है दैट राइट नाउ लेट्स से अगर हमने मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर प्रिंटफ के अंदर लिख सकता हूँ। ठीक है जी, यस सर। हाँ, और कोई डाउट है अब तक जितना हमने डिस्कस किया? सर आपने बोला कि बैकस्लैश एक स्पेशल कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, बट वो डबल कोट्स वाला मेरे को नहीं समझ आया कि डबल कोट्स कैसे उसने प्रिंट कर दिया, लाइक यूजिंग बैक। देखो क्या है कि डबल कोट्स का ना अपना खुद में एक यहाँ पे फंक्शन है। डबल कोट्स का मतलब है कि वो प्रिंटफ में सिर्फ एक ही बार डबल कोट ढूंढेगा, इसके अलावा कोई और डबल कोट आएगा तो वो उसको एरर दे देगा। ठीक है, लेकिन इफ माय रिक्वायरमेंट इसके मुझे यही करवाना है, लेट्स से किसी का बर्थडे है और मुझे वहां पे प्रिंट में चाहिए पीछे कि भाई हैप्पी बर्थडे। ठीक है, और मुझे ये प्रिंट करवाना है कि ये कोट्स में ही प्रिंट हो, तो उस केस में अगर तो देखो मैं सिंपल कर दूंगा, फिर तो वो एक बार में हैप्पी बर्थडे प्रिंट करवा के काम खत्म कर देगा। दिस इज हाउ इट विल प्रिंट हैप्पी बर्थडे, उसने लिख दिया, काम खत्म। बट नाउ इफ आई वांट कि मुझे वो डबल कोट्स भी साथ में लेके आने हैं तो मैं बैकस्लैश डबल कोट डालूंगा यहाँ पे। ठीक है, एंड सिमिलरली यहाँ पे, तो वो डबल कोट्स में हैप्पी बर्थडे को प्रिंट करवाएगा। डिफरेंस समझ में आया? ये सर बेसिकली वो इंक्लूड कर देता है, उसको हाँ, फंक्शन की तरफ ट्रीट नहीं करेगा बस यस कोड्स यस को। यस, ये फर्क है। हाँ जी, एनीवन एनी अदर डाउट? आई थिंक तो सिंगल कोट्स का भी सेम होगा ना? हाँ, सिंगल कोट्स का भी सेम ही होगा। देखो ये अपना सिंगल कोट्स तो आई थिंक डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। सर वो डबल रह गया एक। अच्छा हाँ, एक रह गया। हाँ वो डबल वाला। ओके ओके ओके, ठीक है जी। सर वो आई थिंक स्ट्रिंग के लिए str होता है, str। चलो कोई ना, हम अगली क्लास में करेंगे सर उसको, मैं अभी एक क्लास complex नहीं डाउट है करता। हाँ जी, सर, जैसे आपने वो किया सम इज वो हैश डाल के फिर %d करके आपने वो उसका रिप्लेस किया, जैसे सी आपने डाला हाँ था, हाँ 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 तो हाँ। वो जो सम इज वाला है तो वो प्रिंट एफ के साथ ही आएगा, मतलब उसके लिए भी हमें स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं अलग से? नहीं नहीं, देखो सम इज इक्विवेलेंट टू हैप्पी बर्थडे, जैसे अभी हमने हैप्पी बर्थडे लिखा था वही सम इज है इसमें, क्योंकि डबल कोट्स में जो डाल दे वो तो प्रिंट मार ही देगा ना ये, इररिस्पेक्टिव ऑफ के वो कोई
पीछे से आ रही है इनपुट या कुछ और आ रही है, वो बाद में देखेगा। वो है कि अगर हमने जैसे सम इज %d, तो फिर वो एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ यार मेरे को एक यहाँ पे इंटीजर दे दो, तो वो जो c है, ये वाला c इसको जाके रिप्लेस कर देगा, वो जगह ले लेगा। पर दिस सम इज, अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ और मैं %d भी नहीं डाल रहा, ये भी नहीं डाल रहा, तो दिस इज बीइंग इक्विवेलेंट टू हैप्पी बर्थडे जो हमने अभी प्रिंट करवाया है। कुछ भी है printf के अंदर, कुछ भी लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, दैट्स ऑल। प्रिंट में कुछ भी डबल कोट्स में है तो वो आउटपुट देगा ही प्रिंट हाँ में। मतलब वो तो उसने देना ही, अब यहाँ पे सम नहीं है लेकिन वो सम इज प्रिंट करवाएगा, ये देखो। ओके सर, हाँ जी, हाँ क्लियर कुछ सर। कुछ और डाउट है किसी को? सर आपने फर्स्ट कोडिंग में c इक्वल्स टू a प्लस b लिखा था, राइट? हाँ जी किया था। हाँ हाँ, तो सर वहाँ पे अपने c इक्वल्स टू a प्लस c के साथ एम्परसेंड फंक्शन का यूज नहीं किया था, बिकॉज हमने जो 14 लाइन में c इक्वल्स टू a प्लस b लिखा था, तो उसी टाइम पे c को कोई ना कोई लोकेशन एलोकेट हो चुकी थी रैम में। अभी अभी बता रहा हूँ, देखो कॉम्प्लेक्स मत करो, धीरे धीरे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि सबको समझ आना जरूरी है। a=2 है, मैं scanf वाला अभी नहीं दोबारा लिखूंगा, बट आई होप वो चीज आपको समझ आ गई। अब देखो जब मैंने सिर्फ int abc लिखा, ये मैंने सिर्फ अपना इंटेंशन बताया कि भाई मेरा इंटेंशन है कि मैं इन तीनों को आगे जाके यूज करूं। ऐसा हो भी सकता है कि मैं इन तीनों को ना यूज करूं, ऐसा हो सकता है कि मैं इन तीनों में से 2 यूज कर लिए, मैंने यहाँ c कहीं नहीं यूज करा, और मैं सीधा यहाँ पे सम इज %d लिख के और यहाँ पे कर दूं a प्लस b, तो वो बिना c यूज करे सम तो दे ही देगा, उसमें कोई एरर थोड़ी है, सम में 6 तो आ ही गया। अब मैंने यहाँ पे c को डिक्लेयर किया था, पर c को यहाँ वैल्यू तो कोई मिली नहीं, इसका मतलब c का डेफिनेशन तो हुआ नहीं। और देखो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन का फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने सिर्फ इंटेंशन बताया तो ये डिक्लेरेशन है, इस टाइम पे इसने कोई जगह नहीं घेरी, इसको रैम में कोई जगह नहीं मिली। जब मैंने इसको वैल्यू दी आई गेव a=2, आई गेव b=4, तब इसको एक रैम में रैंडम बैकएंड पे लोकेशन मिली और उस लोकेशन में उसने अपनी वैल्यू सेव करी। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने यहाँ पे लिखा है a=2 b=4, इसका मतलब है कि ये मेरी रैम है बैकएंड पे। ठीक है, अब रैम को समझ लो ये खाने बने हुए हैं अपने। ठीक है, अब उसमें a=2 था, तो इसका मतलब ये मेरा a था, उसके अंदर मैंने 2 सेव कर लिया, ये मेरा b था, रैंडमली यहाँ पे b मेरा 4 सेव हो गया। अब जब मैंने उसको सम प्रिंट करवाना था तो मैंने ये दे दिया a प्लस बी, तो a प्लस बी ने क्या किया, वो इस कंपाइलर की ड्यूटी है कि वो पीछे रैम में से इन दोनों की वैल्यू मंगवाएगा, उन दोनों को ऐड करेगा, उसका सम को यहाँ पे जाके रिप्लेस करके सम प्रिंट करवा देगा। समझ में आ रहा है जी क्या हो रहा है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ a और b बनाया था इसमें, ठीक है, a था और b था, c तो कहीं नहीं है, तो a और b का डिफाइन हुआ है, a और b को 4 बाइट मिला है। ये आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा कि जो मेरा इंटीजर है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे लिखता c=a प्लस बी और यहाँ पे मैं a प्लस बी की बजाय लिखता c, फिर इस लाइन के बाद, इसको पहले सेमीकोलन, इस लाइन के बाद, जस्ट इस लाइन के बाद मुझे यहाँ पे एक रैंडम लोकेशन मिल जाएगी c की, जहाँ पे a प्लस बी का सम सेव हो जाएगा, ये c कहलाएगा। ठीक है, अगर मैंने ये लाइन नहीं यूज करी इसका मतलब c मेरा एलोकेट ही नहीं हुआ रैम में। ठीक है जी? यस सर। एनी अदर डाउट, एनीवन? सर जो \n होता है वो एग्जैक्टली हम लोग कहाँ पे डालते हैं, मतलब नेक्स्ट लाइन करने के लिए कोड में? हाँ मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है कि मुझे अपने जो ये प्रिंटिंग करवानी है इसको सुंदर बनाना है। ठीक है, अब ये सुंदर कैसे बनेगा, देखो या तो मैं कर दूं कि भाई printf a is %d %d कॉमा a, printf, इसको कॉपी कर लेते हैं, b is this, ठीक है, और sum is equal to a plus b। ठीक है, अब मैं यहाँ पे c वाली प्रॉब्लम ही हटा देता हूँ फिलहाल। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे int a b लिया, a और b को वैल्यू दी, उसको प्रिंट करवाया, a is this, b is this and sum is this। अब इन तीनों को अगर मैं रन करवाऊंगा तो ये तीनों एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। देखो a is 2, b is 4, sum is 6। अब इसको थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, we can add a new line at the end of every statement। %d जब उसकी वैल्यू उसको मिल जाएगी हम उसको बोलेंगे चल अगली लाइन में जा, फिर जाके प्रिंट कर, ऐसे ओवरलैप मत कर, हमें कंफ्यूजन हो रही है। तो यहाँ पे मैं आखिरी सम इसके बाद तो डालू ना डालू को फर्क नहीं पड़ेगा, बट नाउ माई आउटपुट विल बी
more beautiful, I can understand it better. इसलिए बैकस्लैश एन लगाते हैं फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग के यार ठीक है मुझे थोड़ा सा और अच्छे वे में प्रेजेंट करना है अपने काम को। समझ में आ गया जी? सर तो फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही होता है मतलब वो? हाँ, मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि डबल कोट्स के अंदर आएगा पहली बात। और जो परसेंट डी है वो एक गेस्ट है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि तू गेस्ट को एक्सपेक्ट कर और गेस्ट को हम बाहर से भेजेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉमा के बाद ए डाला तो वो उसने एक्सपेक्ट किया तो वो यहाँ पे फिल कर गया लोकेशन को। बी वाले ने अपनी लोकेशन ले ली अंदर आके, ए प्लस बी ने अपनी लोकेशन ले ली अंदर आके, ठीक है। तो आएगा तो ये बैकस्लैश एन भी अंदर ही, तभी वो उसको प्रिंट करेगा ना न्यू लाइन को। बैकस्लैश एन इज न्यू लाइन, अब न्यू लाइन को प्रिंट भी तो करवाना, तो डबल कोट्स के अंदर ही आएगा। हाँ ओके सर। What is the Sir. use of, एक सेकंड मेरे पास एक क्वेश्चन आया, what is the use of सिंगल कोट्स? सिंगल कोट्स हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, सिंगल कोट्स इज ओनली फॉर कैरेक्टर। अगर यहाँ पे मुझे सपोज कैर बी नहीं, कैर बी नहीं, डी रखते हैं, अगर मुझे यहाँ पे ए देना है एज ए कैरेक्टर तब मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगाऊंगा और यहाँ पे मैं फिर प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एफ, या फिर चलो इसका थोड़ी सी और खिचड़ी बनाते हैं अब, पुट कैर डी, ठीक है। तो मेरा ये प्रिंट करवा देगा। अब आगे ओवरलैप ना करे तो यहाँ पे भी न्यू लाइन लगा देते हैं। आई वांट टू शो दिस थिंग। अब देखो मेरा ए आ गया, ए क्या था, कैरेक्टर था डी में। अब इसमें ना मतलब कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा एक अलग से इन्होंने बनाया हुआ है। अभी तक हम परसेंट एन मतलब परसेंट डी कर रहे हैं, परसेंट एफ कर रहे हैं, परसेंट डी हो गया, परसेंट सी भी होता है। अब इसी चीज को अगर मैं पुट कैर पे आता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट एफ परसेंट सी एंड यहाँ पे मैं डी दे दूं तो वो क्या करेगा, माई कैरेक्टर इज दिस, और इसको मैं न्यू लाइन तो दे ही दी अगली लाइन में, तो कैरेक्टर इज ए, ठीक है जी। तो सिंगल कोट्स हमेशा सिर्फ कैरेक्टर के लिए आता है। और इसका कैरेक्टर का अब मैं एक और तरीका बताता हूँ। इतना कॉम्प्लेक्स लिखने की बजाय एक चीज कर सकते हो कि अगर या तो आप ऐसे तो कैट डी दे सकते हो, बट अगर ऐसा नहीं देना तो देयर इज ए ऑप्शन फॉर अस कि मैं क्या करूं, पहली बात इसको कमेंट करूं, मल्टीपल कमेंट करके पहले तो सब कोई कमेंट कर दूं, मुझे ये सब चाहिए नहीं। मैं अभी गेट कैर पुट कैर डिस्कस करना चाहता हूं। तो एक मैं गेट कैर नाम का फंक्शन यूज कर रहा हूं, गेट कैर को मैं कर देता हूं कैर डी इक्वल टू गेट कैर, ठीक है। गेट कैर का मतलब है यूजर से इनपुट मांग रहा है कि भाई ये कैरेक्टर दे दे, गेट मी ए कैरेक्टर, एंड देन इफ आई वांट टू प्रिंट इट आई कैन राइट पुट कैर डी। अब ये ध्यान देने वाली बात है, गेट कैर में कुछ भी इनपुट नहीं दिया था हमने यहाँ पे, ठीक है, खाली ब्रैकेट था। पुट कैर में हमने दे दिया डी कि भाई तू प्रिंट कर पर इसको कर। अब ये प्रिंटिंग का ही काम करेगा पर सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए, पुट कैर। अब देखो मैं इसको रन करूंगा तो ये गेट कैर वाला मेरे से एक्सपेक्ट करेगा कि मैं इसको कैरेक्टर दूं। मैं कैरेक्टर दे रहा हूँ जी, और जी दे के एंटर मारने पे इसने जी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे आउटपुट देखो जी 2 बार है क्योंकि यहाँ पे पहली बार मैंने इनपुट दिया, दैट वाज पार्ट ऑफ माय गेट कैर, पुट कैर ने उसको अगली लाइन में प्रिंट करवा दिया एज इट इज, ठीक है। तो देयर आर टू वेज टू प्रिंट कैरेक्टर, ठीक है। अब बताओ जी क्या कह रहे थे, कोई और डाउट था? सर परसेंटेज सी परसेंटेज डी के बाद में भी अगर हम प्रिंट कर रहे हैं कुछ तो उसके बाद में भी लिख सकते हैं परसेंट जैसे सी कोट्स के अंदर, हाँ कोट्स कोट्स के के अंदर। अंदर। अब देखो मैं हाँ इस पे आ रहा था। अब सपोज मैंने इतनी खिचड़ी नहीं बनानी, मैं एक ही बार में सारा काम करना चाहता हूँ, आई वांट टू डू अ बिट ऑफ स्मार्ट वर्क। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दिस कि मुझे ए की वैल्यू दे दो, ए इज परसेंट डी, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है पर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ए इज परसेंट डी, इतना समझ में आ रहा है, और न्यू लाइन दे दिया। साथ ही मैं लिखूं बी इज परसेंट डी, फिर एक न्यू लाइन दे दिया, एंड माई सी इज चलो सीधा लिख देते हैं यहीं पे, सम इज परसेंट डी। अब मैंने क्या किया है, अब इसको ध्यान से देखो, a इज परसेंट डी, इसका मतलब मेरे को एक कैरेक्टर एक इधर से इंटीजर भेजो जो इसकी जगह ले ले पहले वाले की, तो a इज दैट वैल्यू, तो यहाँ पे मैं a लिख दूंगा। बट नाउ आई एम ऑल्सो सेइंग कि न्यू लाइन के बाद b इज परसेंट डी, वो एक और एक गेस्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे b भी दे देंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि जी सम भी प्रिंट करवा दो न्यू लाइन में जाके, तो यहाँ पे हम a प्लस बी दे देंगे। तो मैंने तीनों काम एक ही लाइन में कर दिए, एंड नाउ यू विल सी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा
my answer will be this. A is 2, B is 4, sum is 6. मैंने एक ही लाइन में सारा काम कर लिया. इसको समझो, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो. सॉरी हम स्कैन में नहीं कर सकते कि एक ही लाइन में? स्कैन में भी कर सकते हैं. अब देखो जैसे 2 4 था, मैं क्या कर रहा हूँ, स्कैन एफ %d कॉमा %d एम्परसेंट. कोमा नहीं आएगा, आई थिंक कोमा नहीं आएगा. रुक जाओ भाई, %b. ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉमा जानबूझ के डाला, अभी बताता हूँ क्यों डाला. मैं इसकी जब इनपुट दूंगा ना तो मैं कॉमा डाल के दे दूंगा 2,3 करके. ठीक है, तो वो कॉमा को एज इट इज यूज कर लेगा. अभी देखते हैं, रन. मुझे ये इनपुट कह रहा है तो 2,3 में दे रहा हूँ, कॉमा डाल के दे रहा हूँ क्योंकि मैंने स्कैनएफ के अंदर कॉमा दिया था. एंटर मारा. A is 2, B is 3, sum is 5. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमा ना देता, इंस्टेड मैं यहाँ पे सिंपल जोड़ के लिख देता, तो देखते हैं. तो मैं क्या करूँगा, 2 एंटर, 3 एंटर, सम इज 2. समझ में आया क्या हुआ है? यस सर, यस सर. हाँ, तो अगर मुझे मल्टीपल देने हैं तो मैं यहाँ कॉमा दे सकता हूँ. समझ आई? यस सर बैकस्लैश n डाल सकते हैं दोनों %d के बीच में? इसके अंदर? हाँ, दोनों %d स्कैनएफ के अंदर. यहाँ पे कह रहे हो ना आप? हाँ जी सर. तो यहाँ पे क्यों डाल दें हम, वो बाय डिफॉल्ट दे रहा है हमें. जब देखो अगर मैंने इसको रन किया तो मैंने अब वो क्या कह रहा है कि मुझे 2% चाहिए, 1 और 2. अब 1 और 2 देने के चक्कर में मुझे 2 बार देना पड़ेगा. और पहला इनपुट अगर मैं इसको लिखूं 32, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो %d 2 हो गए. 32 इज 1 इंटीजर ओनली. यस और नो? तो अगर मैं एंटर दूंगा तो अभी भी वो एक और % एक्सपेक्ट कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे 600 ऐसे कर कुछ बड़ा नंबर भी लिख देता हूँ, बहुत बड़ा भी नहीं लिखता, इतना काफी है, 67,872. तो ये सेकंड इंटीजर हो गया. तो इसने A और B को वैल्यू ये दे देगा और वे इस बेसिस पे हमें आंसर दे देगा बाद में. समझ में आया क्या हुआ है? यस सर, ठीक है. हाँ, कोई और डाउट हो तो पूछो. सर बेसिकली स्कैनएफ में पहले हमने %d के साथ A को डिफाइन किया, देन B को, और फिर आपने 19 में printf के साथ सब चीजें एक ही साथ लिख दी हैं, राइट? A is %d, B is %d. तो वो कोऑर्डिनेट कर लेगा कि पहले यूजर ने एक इनपुट दिया %d के साथ A, और इसके बाद हमने A is %a प्रिंट होगा, देन B प्रिंट होगा, लाइक ऐसे लिंक हो जाएगा. यस स्पेशली. अरे यार एक सेकेंड, टाइम भी हो चुका है. आई एम एंडिंग द सेशन इन 1 or 2 minutes. आखिरी चीज बताता हूँ. यहाँ पे क्या हो रहा है, 3% ही है, 1 2 3. A वाला जो सबसे पहले है वो इसकी जगह पे आ जाएगा, B वाला मेरा इस जगह पे आ जाएगा, और ये थर्ड वाला मेरा थर्ड लोकेशन पे आ जाएगा. ये अपने आप अपनी जगह ले लेंगे. इनको पता है कि मैंने किस सीक्वेंस में अंदर जाना है और उनको रिप्लेस करना है. ठीक है, समझ आ गया कोड को? यस सर. सर एक लास्ट डाउट है. हाँ जी पूछो. सब बैकस्लैश n हम पहले कब डालते हैं, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट करने से बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, एंड में और कब एंड में कब डालते हैं? अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी डाल लो. आप यहाँ पे भी डाल सकते हो. तो वो मेरा एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देगा बस. जैसे ये 67872 था, उसके बाद ये A से पहले एक न्यू लाइन दे देगा. ओके सर. हाँ जी ठीक है. चलो ठीक है, लेट्स एंड द सेशन. सो I think this assignment 1 will be available on the LMS. ठीक है, try to solve those questions. नहीं होंगे तो we will discuss in the next lab. nth root वाला करवा लेंगे अगली लैब में, और कंपाउंड इंटरेस्ट करवा लेंगे अगली लैब में. बट टुडे हाँ जी नहीं है शायद, लैब का नहीं है. I will talk to the coordinator sir. ठीक है. तो सर नहीं नेक्स्ट क्लास तक हमें सॉल्व कर देना है असाइनमेंट्स. कोशिश कर लो, नहीं भी होगा तो डाउट्स तो डिस्कस हो ही जाएंगे. आई एम एक्चुअली सेंडिंग दिस लिंक राइट नाउ. यू कैन क्लिक ऑन दिस लिंक, इट इज इन द चैट बॉक्स. ये लिंक आपको डायरेक्ट इस PDF पे ले जाएगा, डॉक फाइल पे. तो आप इसको डाउनलोड कर लो अपने एंड पे. ओके, क्विकली इन्हें नोट्स पे सॉल्व कर लेंगे या फिर आप चेक करेंगे ना? मैं चेक अभी नहीं करूंगा. यू कैन मेक योर ओन डॉक्यूमेंट, आप अपने एंड पे कर लो इसको. ठीक है जी, लाइक प्रैक्टिस. हाँ प्रैक्टिस कर लो. यस ठीक है, जितने होते हैं कर लो, नहीं होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके देन, थैंक यू. आई एम एंडिंग द सेशन. सर जैसे प्लस के लिए तो नॉर्मल प्लस साइन ही है, बाकी सबके लिए भी सेम ही साइन यूज होंगे जो नॉर्मली होते हैं? हाँ, जैसे माइनस है, मल्टीप्लाई, डिवाइड है, वो सब सेम है. रिमाइंडर के लिए % साइन यूज होता है इसमें. अगर मैंने रिमाइंडर यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे A
परसेंट बी कर दूंगा तो फिर क्या होगा वो जैसे 3% 2 करेगा तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा तो इसका आउटपुट 1 आ जाएगा यहाँ पे। रिमाइंडर के लिए परसेंट होता है। हाँ जी सर, क्लियर सर, थैंक यू सर। ठीक है, डिवीजन के लिए सिंपल स्लैश ही है। सिंपल स्लैश है, हाँ करके देख लेना, Okay. लग जाएगा पता। ठीक है, प्ले विद Thank you, इट। sir. ओके, थैंक यू, आई एम एंडिंग द सेशन। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।